Now I'm audible? Okay. So first of all, very good evening, everyone. Right? So, Edutaria, you are having the GS batch here. So those of you are there in the normal batch, plus those who have come for this particular session here. So I welcome you all. Right? I don't know how many people know me. You are aware of my name? I think Patna है ना, पाटलिपुत्र जितने भी है यहाँ का अलग है. I have taught with Vision IAS, ठीक है, Vajiraman Ravi, right, Drishti IAS. Okay, you'll find me, if you search my name in YouTube channel, you'll find number of videos of that. तो वो अलग बात है, but just a little bit introduction. And I teach general science and science and technology, along with environment ecology and disaster management. These are my areas which I cover, right? Now you all are for the BPSC batch, right? Now you know that BPSC, you are aware of that September, the date for the BPSC exam has been announced. And you know, BPSC is one exam which is conducted regularly. UP PCS and BPSC, UP and Bihar, they are on the track. Jharkhand की तो बात करना छोड़ी दो आप, right? You know what is happening with the Jharkhand state, right from the beginning, all the exams. तो वो तो कुछ नहीं, मतलब JPSC तो मुझे लगता है UPSC का भी आगे है. UPSC is unpredictable, JPSC is double unpredictable. But BPSC is one exam which you can, you know, get into the service. When I teach in Delhi, right, in the class of 500 students, there what happens there, most of the students are just the beginners. कई बार मैं कहता भी हूँ, I sometimes say in the class of Kota Factory. You know Kota Factory? There's a web series also in Kota Factory. That Kota Factory means the students who go to Delhi and such big institute, you know, big institute, what is called corporate style coaching institute. ठीक है? एक कहावत है ना, ऊंचा मकान फीका पकवान. ठीक है? तो that is what the scenario is all about. अब पैसे भी जम कर लेते हैं, 2-2 लाख रुपये, है ना? पैसे तो छोड़ेंगे नहीं, corporate है ना? Corporate, you know, how does the corporate work? You all know. Branding, like Lux, Hamam, right? और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं? Nike, हाँ, but if you talk about Nike or Reebok or something, they have a, along with money, they give you quality also, right? When you buy a product which has a brand name, it gives you quality as well. तभी आप पैसा देते हो ना. अगर आपको वैन ह्यूजन का शर्ट पहनना है और आप 2000 का शर्ट पहनते हो तो उसका कोई फर्क होता है वैन ह्यूजन के शर्ट और लोकल ब्रांडेड शर्ट पे, होता है कि नहीं होता है? लेकिन हाँ, कई बार लोकल ब्रांडेड शर्ट भी वैन ह्यूजन को फेल कर देता है. इज राइट? सो नाउ बट द प्रॉब्लम इज दैट द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट देयर, राइट, दे चार्ज सो मच ऑफ मनी, बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी कंटेंट एंड द टीचिंग पार्ट, दे आर लैगिंग बिहाइंड. लेकिन क्या होता है कि बच्चों की साइकोलॉजी होती है, दिल्ली पहुंच गए कि आईएएस बन गए, विच इज टोटली रॉन्ग नोशन, विच इज टोटली मिसकॉन्सेप्ट. दिल्ली में जाके आईएएस बनते भी हैं और दिल्ली में जाके आईएएस नहीं भी बनते. सो इज ट्रू विद पटना ऑल्सो. पटना में रह के भी लोग आईएएस या स्टेट पीसीएस में जा सकता है या नहीं भी हो सकता है. सो फॉर आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, प्लेस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स द सपोर्ट सिस्टम. ठीक है? आई विल स्टार्ट विद ऑल द टॉपिक एवरीथिंग देयर टुडे बीइंग अ जनरल सेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एरिया. नाउ लेट मी गेट बैक टू इट. व्हेन यू टेक बीपीएससी एग्जाम, now what the BPSC is doing is following UPSC. जनरल साइंस के क्वेश्चन कम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया जा रहा है. 30 मार्क्स, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत मैटर करता है. और होता ये है कि व्हाट इट हैपेंस देयर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, दे हैव अ फोबिया. वो क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, छोड़ देते, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होगा. क्वेश्चन मे बी वेरी सिंपल, but they simply, because of phobia, oh, I'm very afraid of science, I'm very scared of science and technology area, so they don't attempt the question, which could really qualify them the prelims exam to write mains exam, right? So here I just want to make you understand, you should not be afraid of this subject, general science and science and technology. Science and technology questions are getting more and more in the examination. The reason is that that is a dynamic area. Right? What do you mean by dynamic area? Current affairs. You have to know theory part, but you have to connect with contemporary things. Right? Current aspect becomes very, very important for the examination. Right? So for every exam, what I always keep on saying, that you should go to the syllabus.
कि what is the syllabus is there. Syllabus is just the window. It gives you idea कि what type of topics you have to read. And what is second thing here? PYQ, previous year questions. ठीक है, कितने लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का? You have question bank? Good, very good. That's really good. The students here, I am very, very happy to be here teaching you all because you are aware students, right? Not like quota factory, all right? So at least you are aware of the syllabus and you know the question. But still, those who have not gone through it, I will request them to get to the previous year question paper for at least you should look for 5 to 6 years. Don't go too back. 10 साल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 5 to 6 years का क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है. एंड नॉट ओनली प्रीलिम्स एग्जाम बट ऑल्सो मेन एग्जामिनेशन. ठीक है, बोथ आर रिक्वायर्ड देयर. नाउ लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक वन बाय वन. I'll just have some warm up. Then I'll come to the syllabus, reference, sources, how you should proceed with the subject, how you should take this subject, right, and study very well. Let's say, for example, this one. You know that it has all made headlines? 4 Indian astronauts. Like, you know, Americans call astronaut, Russians call cosmonauts. And now India's Indian astronaut, we have given name Vyomnaut. You know, Vyom, the sky. And you know, there is a very important place in Kerala, Trivandrum, Thiruvananthapuram. We have ISRO, ISRO, Indian Space Research Organization Center, VSSC, Vikram Sarabhai Space Center. You all are aware of Dr. Vikram Sarabhai, father of India's space program, Indian space program. So, just in the month of February, right? उस समय मैं भी वहाँ February में केरला में क्लास ले रहा था. I keep on going all over the country for the classes. That time, the Prime Minister went to VSSC and these 4 names were there. They were given astronaut wings. They are the trained Indian Air Force pilots, you know, IAF. Because when you are talking about astronauts, they are to be people who should be working with zero gravity, microgravity. We are talking about outer space. So group captain, this Prashant Nair, then group captain Ajit Krishnan, then you have a group captain Angad Pratap, and then you have a youngest one, wing commander Subhanshu Shukla. Angad Pratap and Subhanshu Shukla are from Uttar Pradesh, right? Group captain Prashant Nair is from Kerala, and group captain Ajit Krishnan is from Tamil Nadu. They are very trained pilots from Indian Air Force who have been going through rigorous training for Gaganyaan mission. What is Gaganyaan mission? It's India's first human space flight. What flight? Human space flight. Right, where they will go to there. And we are into very fast mode of preparation next year, 2025. India will carry out Gaganyaan mission. ये जल्दी होने वाला इस ईयर के एंड में, right? October, November, we are going to have unmanned crew mission. Unmanned, that means without human will carry out the crew mission. A module which will where the astronauts will be there, but now first we'll do what? Without human, without astronaut. We'll put the module and we'll bring it back. ठीक है, सब कुछ सही रहेगा तो 2025 will be a historical moment for India where we'll carry out this astronaut mission. So now these are in current affairs. Science and technology is linked with current affairs. But what is very important, when you read about it, BPSC में कैसा question आ सकता है? How can we ask? They can ask you even the names also. See, BPSC और UPSC में यही फर्क आता है. BPSC में बहुत सारे रट्टा मारना होता है ना, GK, जनरल नॉलेज. UPSC में रट्टाफिकेशन उतना नहीं चलता है. बट BPSC में क्या हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ देम आर द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ABCD. अगर आपको याद है तो याद है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. तो ये स्टेट PCS का आपका पूछने का तरीका होता है. और दूसरा क्या आ सकता है? व्हाट सेकंड कुड बी आस्क्ड अबाउट द मिशन, गगनयान मिशन. I'll tell you that science and technology questions in BPSC exam I have found very simple. They are direct question. और ट्विस्टिंग नहीं होता है. अगर किसी को पता है गगनयान है तो वो जल्दी सॉल्व कर सकता है. अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. इंडिया carrying out this type of mission, if you compare worldwide, so how many countries in the world they have carried this kind of manned mission? कौन कौन से कंट्रीज है, कितने कंट्रीज है?
3 कंट्रीज है, कौन कौन सा है? विच आर 3 कंट्रीज? वन इज यूएसए, सेकेंड रशिया, एंड थर्ड इज आवर नेबर चाइना. NASA, then you have Roscosmos. Russian Space Agency is Roscosmos. And the third one is Chinese Aeronautical Science, CAS. And the fourth country in the world will be India, ISRO, Indian Space Research Organization. We are working towards that. Yuri Gagarin, you know that name, Yuri Gagarin? He is the first man to go to outer space by Soviet Union. At that time, USSR, 1961. Now, Yuri Gagarin went to the outer space and was brought back way back in 60s. And now India is carrying out in 2025. तो हम कितने पिछड़े हैं आप देखो. We're so much back. American, Russians, they have done in 60s and 70s. We are trying to do in 21st century. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि reason being that India being a developing country, we don't have enough resource, right? And at the same time technology, right? ये ऐसे मिशन क्या होते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होता है. इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमने धीरे धीरे डेवलप किया है ना. तो ये सब चीज़ कहाँ आएगा? मेंस एग्जाम में. प्री एग्जाम क्या है? डायरेक्ट. मेंस क्या होगा? यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट? आपको लिखना होगा. तो आपको उस पर क्या पता होना चाहिए? बैकग्राउंड, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अदर काइंड ऑफ फैक्ट्स, वो पता होना चाहिए. सो लेट इज नाउ जस्ट आई हैव गिवन हियर देयर. So let's say, for example, from exam point of view, you have to be aware there. So one area comes space technology. Okay? Okay, let me bring some other area there. What is the name of the lunar mission of India? Lunar mission of India, Chandrayaan. Which one we have carried out recently? Chandrayaan 3. And now we are preparing for Chandrayaan 4. Right? Now anybody in the classroom who can tell me what was so unique about Chandrayaan 3 mission? हमने 3 किया है ना, 1, 2, 3. तो चंद्रयान 3 में क्या खास बात था? क्या क्या खास बात था? Okay, let me write here. So if you look at Chandrayaan mission, India's lunar mission, so this the first thing what you have said, South Pole. But what is first part? It had an orbiter, and then you had a lander. And you know the name of the lander is named Dr. Vikram Sarabhai. And along with lander, we had a rover, 6-wheel rover, Pragyan. है ना? Pragyan name was there. Chandrayaan 2 में हम landing नहीं कर पाए. What type of landing? Soft landing. We were not able to do soft landing. It got crash landed. But in Chandrayaan 3 mission, we were successfully able to soft land on the, what you have said, south pole of moon, what is called dark side of the moon. यही है ना, मून के जो जहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, that area we were able to go. And India is the first country in the world to land to that area. See, I'm saying India is the first country to land on that spot, southern pole of moon. But India is not the first country in the world to land on the moon. उससे पहले US, you know, US Apollo mission, you know, Apollo, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, a small step of man, giant leap for mankind. ये कहा था ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो मिशन में. तो अमेरिकाज हैव डन वेरी लॉन्ग वे बैक, नासा, राइट, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, और अभी तो चाइना हैज़ ऑल्सो गॉन टू द मून. और चाइना हमसे पहले लैंड कर चुका है, मतलब डार्क साइड नहीं, चंद्रमा में लैंड करा चुका है. चैंगी मिशन है. चाइना का मिशन क्या है? चैंगी. ठीक है, तो अपने साउथ पोल में मून पे लैंड किया. और अभी इसका क्या चीज़ यहाँ पर है, चंद्रयान 3 जो है, ये भी था ना. अब बीपीएससी क्या याद रखना होगा, शिव शक्ति, ये लैंडिंग साइट है ना. दिस वॉज गिवन द नेम. ऐसे काफ़ी डिबेट हुआ डिबेट हुआ कि ऐसा नाम क्यों, राइट. तो कई लोग इसके पॉजिटिव थे, कई लोग नेगेटिव भी थे. कई लोगों का कहना था कि न्यूट्रल नाम होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस नाम नहीं होना चाहिए, धार्मिक नाम क्यों. फिर कई लोग आर्गूमेंट दिए कि अभी जब प्लैनेट्स, मून्स के नाम ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स एंड गॉडेसेस हो सकता है, तो हिंदू माइथोलॉजी को क्यों नहीं. ये भी आर्गूमेंट है ना. यू नो जुपिटर, व्हाट इज जुपिटर? इज अ गॉड ऑफ वॉर. कहाँ आता है? ग्रीक माइथोलॉजी, है ना. सैटर्न, ये सब किसके नाम है? सैटर्न, जुपिटर, मरकुरी, ये सब ग्रीक माइथोलॉजी का है.
तो वहाँ ये एक सवाल उठा ना कि जब ग्रीक माइथोलॉजी तो इंडियन माइथोलॉजी क्यों नहीं हो सकता है? तो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद द नेम. What is very important, the dark side. And actually, what is our mission program? To understand the soil, mineral, and presence of water. चंद्रमा में पानी, जल, क्या पता एक दिन चंद्रमा में, ठीक है. कई सारे हैं ना फिल्मी गाने भी बने हुए हैं ना, चंद्रमा में कितने गाने हो गए. मैन हैज ऑलवेज इन फैसिनेटेड विद मून, है क्या नहीं? चंदा रे कभी जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है. कई बार ये भी होता है कि ये जहाँ अगर हम चंद्रमा देखें तो कैसा होगा. एंड अ पर्सन एलॉन मस्क, ही इज ऑलरेडी हैव अ प्लान टू सेंड मैन टू मार्स. तो मून क्या है? मून तो पास में. सो वन डे इट माइट हैपन, राइट, इन नॉट इन आवर जनरेशन, मे बी आवर फ्यूचर जनरेशन, दे मे बी लिविंग ऑन द मून. तो व्हाट यू रिक्वायर फॉर दैट? वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी चाहिए ना. विदाउट दैट ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव. एयर तो चलो मैनेज कर लेंगे सिलेंडर लगा के, पीने को तो पानी चाहिए, राइट. तो डिस्कवर फाइंडिंग आउट वाटर. वाई डार्क साइड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज देर मे बी इन द crater, crater, moon has a crater, may have ice, ice water. That could be a very important thing. Then mineral elements found in the moon. क्या पता एक समय माइनिंग किया जाए, माइनिंग फ्रॉम द मून. और हो सकता है टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग ना, रोबोटिक्स एंड ऑल दिस आर एडवांसिंग. तो वन डे इट माइट बी पॉसिबल दैट वी आर माइनिंग आउट फ्रॉम मून. इट माइट बी पॉसिबल देयर. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बट बीपीएससी के लिए ये सब तो ठीक है. हमें क्या जानना होगा? व्हाट वी नीड टू नो इंस्ट्रूमेंट्स, कि विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स. कई बार होता है ना, कोई भी मिशन का क्या होता है, दे कैरी समथिंग कॉल्ड पेलोड, राइट. दोज इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, then objective of the instrument, that becomes very important. So we will be studying that. See, today is the first class. Today you are getting general orientation about science and technology. But we are going to cover all this. है ना, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ पर. और एक चीज़ ये याद रखना है, क्योंकि जैसे अभी जो मुझे लगता है, what I feel that I was talking downstairs with the management there, that whichever subject you study, history, geography, polity, economy, science and technology, environment, whichever subject you study, one thing is that you are learning the concept. Second thing is the current affairs. And what is third thing here? Third thing is the practice. जो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, और आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. आप बीपीएससी दोगे ठीक है, लेकिन आपको जो जो एग्जाम में साइंस टेक क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस होना चाहिए. कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं ना. हो सकता है किसी और एग्जाम में है और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो यू हैव टू ऑलवेज बी प्रैक्टिसिंग मोर अबाउट दैट. सो जस्ट अ पार्ट ऑफ इट देयर. Now we are planning for Chandrayaan 4 mission. Let me tell you here briefly, because today is just a general class. So let me tell you, Chandrayaan 4 will be India's mission to bring sample from the moon. Moon से sample लेके अर्थ पे लाना है, पृथ्वी पे लाना है. ऐसा करने वाले कितने कंट्रीज हैं कि किसी प्लैनेट में, किसी मून का या किसी जगह का सैंपल अर्थ पे लाया जाए? ऐसे कितने कंट्रीज हैं? आप समझ रहे हो? सी वन इज द मिशन जो एंड हो जाता है वहां पर. अब आप सोचो रिटर्न, सैंपल रिटर्न टू द अर्थ, दैट विल बी चंद्रयान 4 और 4th मिशन. तो ऐसा कोई भी, कौन सा ऐसा कंट्री है जो इस तरह के सैंपल को कलेक्ट करके वापस अर्थ में लाके स्टडी करता है? एक यूएसए का है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई मिशन का नाम बता सकते हो? कैन यू नेम मी अ मिशन वेयर एनी टाइप ऑफ सेलेस्टियल सैंपल हैज बीन ब्रॉट टू द अर्थ फॉर स्टडी? जनरल नॉलेज क्वेश्चन. सी बीपीएससी क्वेश्चन विल बी लाइक दैट. आपको इंडिया का मिशन पढ़ना है, बट यू शुड नो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट, है ना, ग्लोबल डेवलपमेंट विच मेक हेडलाइंस. हाउ मेनी नो दिस वन? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? ऑसिरिस रेक्स नहीं है ना. मैं वही बता रहा हूँ, ये यूएस का नासा का मिशन है जहाँ पर एक एस्ट्रॉइड है. एस्ट्रॉइड कहाँ एस्ट्रॉइड पाया जाता है? व्हेन यू रीड इन ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. बट समटाइम्स सम एस्ट्रॉइड कम नियर टू अर्थ ऑल्सो. उसको बोलते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड बोलते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड. सो यू नो दैट इन व्हेन यू रीड ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड्स आर कंसिडर्ड टू बी फ्रैगमेंट ऑफ सम बिग प्लैनेट which might be there between Mars and Jupiter, but got broken. Rock and debris there. And they also go around the sun, just like, sometimes there. So near Earth asteroid, this name
called here Bennu. आईफिल टावर के बराबर है, यू नो पेरिस आईफिल टावर, दैट एस्ट्रॉइड। तो नासा का मिशन है ऑसिरिस रेक्स। क्या किया नासा ने? स्पेसक्राफ्ट को भेजा, कहाँ लैंड किया? बेनू में। और वो स्पेसक्राफ्ट क्या किया? वहाँ का सैंपल को लेके वापस अर्थ, एस्ट्रॉइड सैंपल को वापस लाया। सोचो किस तरह का मिशन होगा। और यही चीज़ हम करने वाले हैं चंद्रमा में, चंद्रयान 4। सो इफ यू स्टडी लाइक दिस यू नेवर फॉरगेट द मिशन। देखो एक चीज़ होता है रट्टाफिकेशन करना, आपको लिस्ट रट्टा मार रहे हो, कल भूल जाओगे, आज आपको याद रहेगा, कल भूल जाओगे। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन यू रीड समथिंग एंड यू लिंक विद द कॉन्सेप्ट एंड द वर्ड्स फैक्ट्स, यू नॉट फॉरगेट इट। अब जैसे मैंने क्या बताया अभी, बेनू, क्या है बेनू? एस्ट्रॉइड। कहाँ है? अर्थ के करीब, राइट? आईफिल टावर। द मिशन इज दिस वन। और प्रीलिम्स में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन प्रीलिम्स? क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है? इमेजिन यू कैन रिकॉल ऑसिरिस रेक्स, समवेयर आई हैव रेड, एंड यू हैव द चॉइस ऑल्सो ना, ABCD, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मून। तो बताया कि ओके आई हैव रेड समवेयर। और ये किसका मिशन है? नासा मिशन, अमेरिकन मिशन देयर। एंड व्हाट टाइप ऑफ मिशन इज देयर? एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न। है ना? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रॉपर अप्रोच से आप पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। यस, देर आर सर्टन फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स कैन बी रिमेंबर्ड if you revise it again and again. See, for a teacher, why teacher is able to remember? Teacher teach 100 of times, right? Same topic I could have taught so many times, so I remember it. If same the students read it 100 times, student will also remember it. ये चीज़ है ना, इंसान ही है ना, टीचर भी तो एक इंसान है, आप ही की तरह है। और टीचर को याद क्यों होता है? क्योंकि टीचर बहुत बार पढ़ाता है तो उसके दिमाग में होता है। वही अगर स्टूडेंट बार बार पढ़े तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। They will remember what is Osiris Rex. So why I gave you this example? Only for one purpose, that even India is planning such a mission, but we are planning for moon, Earth's moon, not for asteroid. For the moon we are planning Chandrayaan 4. Will bring the sample of moon to the earth. That's going to be very challenging for India. Challenging, you know, technology, you know. We don't have that advanced technology. NASA is a very, you know, high in the case of technological area. India उतने level पे नहीं है, NASA is much ahead. But we are trying to do this kind of mission where we will send Chandrayaan, again land on the moon, take the sample like Pragya rover. We'll have a rover which will take the sample and come back. That's what we are planning. Right? ठीक है? So that is what you can. So if you want to write something, you can write it down. Otherwise, you'll have. These are the earlier astronauts. ये astronauts वगैरह है जो कि वर्ल्ड वाइड है, उसके नाम याद नहीं करना है। दैट्स ऑल इन द न्यूज़ देयर। यू नो दिस चंद्रयान 4, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये चीज़ है। इट विल लैंड, टेक द सैंपल, गो अप, होता है लिफ्ट, टेक द सैंपल, गो अप, विल बी अगेन विद द स्पेस क्राफ्ट जो मून के चारों ओर है, एंड देन कम बैक टू द अर्थ। ये बहुत एडवांस मिशन है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी एडवांस्ड। See, all this we are going to learn in detailed part in the classroom. I am going to teach you all this one. अभी तो मैं केवल warm up कर रहा हूँ, right? Before we run marathon, you know, what you need? You need to warm up your body. That is, you're getting the idea, what is called idea, कि what type of questions can be asked in the examination, right? Where you have to prepare with it. All right. Now let's look at this one. What is this? Any idea? क्या है ये? हाँ, what is this? Space station. Okay, tell me, which space station is right now? Worldwide कौन सा स्टेशन है? हाँ, you are aware. हाँ, I want my children to, my student to interact. ठीक है, आपको पता है, आपके अंदर है ना झिझक नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यही है ना? ओके, लेट मी डिस्कस समथिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
Let me give you some kind of understanding here. When you read newspaper current affairs, you will come across this name always, right? That photograph, I'll come to that. What is that photograph? Is a space station, but I'll come to in what context there. See, this is space station or any space station. They're built into low Earth orbit. देखो टेक्निकल वर्ड आ रहा है ना, लो अर्थ ऑर्बिट. तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग, व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट? दैट शुड कम टू योर माइंड कि दिस काइंड ऑफ स्टेशंस आर बिल्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट. तो व्हाट इज द लो अर्थ ऑर्बिट? So low Earth orbit, when you say, that goes up to the range of 1,000 kilometers. So normally this kind of orbit, it is in the range of 400 kilometer to 600 kilometers. You know, just like satellite going around the Earth, right? Satellite घूमता है ना, उपग्रह, it goes around that. So Earth here, when we have Earth, we have so many type of satellites around Earth. Now this type of space station, they are constructed low Earth orbit. Imagine 300 kilometers up in the sky. There the stations are there, right? मैं इसका थोड़ा background बताता हूँ. Way back in 70s, that time, you know, US and Russia had Cold War. They were competing with each other in space program. So the first country to build space station was Russia, Mir. His name is Russian. That time, you know, USSR. But then, you know, after Cold War got over in 1990s. So same Mir was assembled to develop ISS. What is the name here? International. And it is managed by 5 agencies. One is USA, NASA. Second, Russia, Roscosmos. Yes, you are right. Third country is Japan. You know, Japan's agency's name is JAXA. Then European countries has got ESA, European Space Agency. European Space Agency. And the fifth country is Canada. See, ये याद रखना, CSA, Canadian Space Agency. But when you have CAS, Chinese Aeronautical Science, CAS. But when you read CSA, that stands for Canadian Space Agency. ठीक है, ये 5 स्पेस एजेंसी क्या मैनेज करता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सारा मैनेज होता है. Now let me add another thing here. China, our neighbor, right? है ना, हमारे पड़ोसी में. एंड चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया इन स्पेस प्रोग्राम. चाइना भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बना रहा है, टैंगोंग. ठीक है, चाइनीज का क्या नाम है एजेंसी का? CAS. इसका बन रहा है टैंगोंग. तो अगर चाइना बना रहा है तो हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? हमें भी तो कुछ करना होगा. यू नो, नेबरहुड वाला है ना, नेबरहुड सिंड्रोम, इसको बोलते हैं नेबरहुड सिंड्रोम, राइट? एक तरह से आप ये समझो, ये भी कोल्ड वॉर है. इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोल्ड वॉर. आई टेल यू दैट इन जियो पॉलिटिक्स में बात करें, ये भी कोल्ड वॉर है. इंडिया और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है. इफ वी डेवलप अ मिसाइल, चाइना ऑल्सो बिल्ड अ मिसाइल. अब चाइना मिसाइल बनाता है तो इंडिया भी मिसाइल बनाता है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी. और यू नो, एवरी कंट्रीज स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मेजर्ड बाय टेक्नोलॉजी. तो चाइना है तो हमें भी बनाना है. और ये पता है, चाइना इंडिपेंडेंट बना रहा है. दैट मीन्स चाइना कैन कंट्रोल द स्पेस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ एनीबडी हैज स्टेशन, दे कैन डू एनीथिंग फ्रॉम आउटर स्पेस. इवन मिलिट्री, यू नो, मिलिट्री कैन बी डन देयर. ये हो सकता है. सो इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज स्पेस स्टेशन. अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो अभी आपने फोटोग्राफ देखा, वो इंडिया का स्पेस स्टेशन का मॉडल है. द फोटोग्राफ विच आई हैव शोन यू. ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है आप देखो, दिस वन, ये इंडिया का मॉडल होगा. ये है भारतीय स्पेस स्टेशन, BSS उसका नाम दिया गया. यू ऑल नो हु इज द राइट नाउ चेयरमैन ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस स्टेशन?
एस सोमनाथ, अभी मीडिया ब्रीफिंग हुआ था, उन्होंने बताया कि हम 2028 से 2028 से काम चालू करेंगे और 2035-36 तक में हम अपना स्टेशन बना लेंगे, आवर ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो अभी अब इसका ये ग्राफिक है ना, अब समझ लो ग्राफिक, जैसे घर बनाने से पहले क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, फिर उसको घर बनाते हैं, तो ऐसा होगा ये इंडिया का, ऐसा दिखेगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड्स ऑफ रुपीज आर स्पेंट टू बिल्ड सच काइंड ऑफ स्टेशन। पैसे की बर्बादी नहीं है? हमारे देश में इतनी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या नहीं है? क्या लगता है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भारतीय स्पेस स्टेशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्यों? जिस तरह से 15-16 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री ने हाँ, डिस्कवर किया अलग अलग आइलैंड, ठीक है, आज के टाइम पे वो स्पेस है। ठीक है। सी ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी कि वे बैक इन अर्लियर व्हेन द यूरोपियंस वेर एबल टू डिस्कवर न्यू टाइप ऑफ आइलैंड्स इन द ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, and they got that advantage of getting the resource. So almost you can understand what he has given the analogy कि such kind of space station can help us explore the universe. According to him, the islands is what? Universe, study of universe. And we can also discover a lot of things in astronomy, you know, astronomical science, वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन what about that, your opinion? गरीबी है, इतनी सारी चीज़ें हो रहे हैं, क्या इतना पैसा खर्च करके बनाना चाहिए? हाँ, तो उसका क्या रीज़न होना चाहिए? Okay, the other countries are doing, and India cannot be left behind in the space technology. There's something, you know, what is something called space market. Excellent, very good. I've said it, China, the neighborhood there. So in future, you know, normally, you know, 2 world war have been there, land, air, water. The next domain has come cyber warfare. A पांचवा domain is space war. Countries will try to dominate in the space with the weapons. And ऐसा नहीं है, there have been some experiment also done on the space level, right? अभी जो लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव, इंडिया conducted test called ASAT, Mission Shakti, anti-satellite weapon. You know what is anti-satellite weapon? Which can destroy a satellite. ठीक है? Even China and Russia, they have developed missile which can be fired from space, outer space to the earth. अब ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो we have to also counteract those kind of threat, right? Again, this could be there, but I'll come to main part of it. What is main thing here? See, when you go up in the space, the gravity is zero. It has a zero gravity or very less gravity, microgravity, right? And the number of scientific experiments can be carried out. Suppose when we are on the earth, there is no zero gravity. And let's say we want to develop some product, some kind of products which require zero gravity. So this becomes like a lab, you know, laboratory. Our Gaganyaan mission will also conduct many experiments in the outer space. Again, space astronomy. Now just imagine, this is also like a satellite. You know, today we use meteorological satellite, study of cloud, weather. Today we can study mapping of earth, agriculture, forestry, water resource, right? Even we can do it from space station. अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 300-400 किलोमीटर दूरी में क्या होता है, अर्थ के करीब है, तो हम मैपिंग कर सकते हैं रिसोर्सेज का, डाटा आ सकता है हमारे पास, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो स्टडी द सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। और एक और चीज़ आ रहा है, पता है क्या है, जो मैंने बताया ना, स्पेस मार्केट। स्पेस मार्केट जैसे कि नाउ यू नो प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम अप। इमेजिन करो कि कल इंडिया का अपना स्टेशन है, वी विल बी सेंडिंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट देयर, उनको भी रिसर्च करना है ना, और हमारा क्या होता है, अफोर्डेबल, सस्ता और टिकाऊ, कम पैसे में, ये होता है ना। तो जो एक अमेरिका को जितना पैसा खर्च होगा, इंडिया क्या करेगा, 10 गुना कम में कर देगा। तो पैसे बचाने के लिए किसके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। आज हम फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, वी लॉन्च फॉरेन सैटेलाइट, और उससे हमारी कमाई होती है, कल जाके हम इसके थ्रू करेंगे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, रशियन एस्ट्रोनॉट, अब छोड़ो कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत सारे कंट्री स्पेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनसे पैसा कमा सकते हैं,
क्या पता, केन्या, राइट, नामीबिया, नेपाल, भूटान, दे ऑल्सो हैव एस्पिरेशन, सो वी कैन अर्न फ्रॉम देयर, है ना। वो तो नहीं जा पाएगा, नेपाल कहाँ जाएगा? नेपाल को अगर चाहिए अपना सैटेलाइट बनाना है, कुछ बनाना है, नेपाल के लिए कौन बेटर होगा, चाइना या इंडिया? ऑल्सो चाइना इज ऑल्सो वेरी नियर बाई, कि कहाँ उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, वो दोनों से ट्राई करेगा। नेपाल, यू नो, नेपाल इज स्मॉल कंट्री, ठीक है ना, और नेपाल का चाइना के साथ भी है क्योंकि बगल में चाइना है, और इंडिया तो पता है, इंडिया और नेपाल का रिलेशन पता है, तो अगर उसको सैटेलाइट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दे विल रीच टू द इंडियन हेल्प ऑल्सो देयर। और हो सकता है ना, क्या पता नेपाल की भी इच्छा हो कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को भेजे वहाँ आउटर स्पेस, जैसे कि आपको पता है राकेश शर्मा, यू नो हु इज राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर, इंडियन हु वेंट टू द आउटर स्पेस, तो ऐसा हो सकता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो दैट इट हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट, व्हाट आई वांट टू से, इट हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड देयर? ऑल दिस आर कमिंग अप इन द स्पेस प्रोग्राम, all these are happening there, right? So we will be covering all this. I just wanted to see how much you are aware of it. मैं ये देखना चाहता हूँ कितना आप पढ़ते हो, न्यूज़ क्या पढ़ते हो, कितने चीज़ अवेयरनेस है। कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस तो हम लोग जाएंगे, बट आई वांट टू जस्ट चेक हाउ मच यू आर एबल टू अवेयर। ओके, वन लास्ट थिंग, देन आई विल कम टू सिलेबस। व्हाट इज दिस? देन आई विल कम टू सिलेबस पार्ट ऑफ इट। व्हाट इज दिस? एनीबॉडी इन द क्लासरूम? टेलीस्कोप, ओके। क्या है, कैसा है ये ऑलमोस्ट मैं बॉर्नविटा क्विज कंपटीशन खेल रहा हूँ आपके साथ, यू नो बॉर्नविटा क्विज कंपटीशन, स्कूल के बच्चों को फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। नाउ टेल व्हाट इज दिस, राइट? कई बार केबीसी में भी ऐसा होता है, केबीसी में एक बार होता है जब फोटो दिखाते कुछ नहीं होता है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसा होता है कि जब फ्लिप कोई क्वेश्चन होता है तो दिखाते हैं वो इमेज एंड देन कभी सुनाते हैं वो, एंड देन यू से विच इज करेक्ट, राइट? हाँ, तो क्या है ये बताओ, व्हाट इज दिस? हाँ, गोल्फ कोर्स का लग रहा है, ठीक है तो सैटेलाइट ही लग रहा है ना, अर्थ के ऊपर है ना। मैं बताता हूँ, दिस इज सी नासा, यहाँ आप ध्यान दो, नासा है और इधर क्या है, इसरो है। चलो अब मैंने हिंट दे दिया, somebody is good, very good, it's called NISSAR, NASA ISRO synthetic aperture radar is a joint collaboration with two countries. Synthetic aperture radar, this is the full form of the mission, is a satellite, see this is satellite, अब देख लो सोलर पैनल है ना, सैटेलाइट सोलर पैनल is a low earth orbit satellite, and you have this radar, ये radar है, you know radar there, जो कि normally army, air force, navy, military use करते हैं ना। Sometimes you know we use a Doppler radar, you know Doppler effect, Doppler radar in meteorology, weather science वगैरह, wind speed वगैरह जो होता है, तो ये स्पेस एंटेना है। और मैं दूसरा बेटर वर्ड यूज करता हूँ, एंटेना। देखा है ना एंटेना, केबल टीवी का देखा है एंटेना, उसी का छोटा होता है ना घर में, डिश एंटेना, DTH, डायरेक्ट टू होम, इलेक्ट्रॉन एंटेना, रडार है वो। ये यहाँ पे क्या वर्ड है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। अपर्चर ये होता है, देखो आप, ये जो है ना डायमीटर, डायमीटर होगा ना साइज, सिंथेटिक मतलब बना हुआ उससे। तो ये तो मिशन है, अभी जल्दी होने वाला है, वेरी सुन इंडिया इज गोइंग टू कैरी आउट निसार, सैटेलाइट इज रेडी, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, this satellite will study Earth's ecosystem, ecological system. Now what do you mean by ecological system? कहाँ आता है what ecological system? हाँ which subject में? Ecology. When you read ecology, environment, biotic, abiotic, forest, grassland, desert, ocean, क्या है ये? Ecological system, ecosystem. और अभी आजकल क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं ना ओशन में, रिवर में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, उसको स्टडी करेगा। अर्थक्वेक, यू नो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और आजकल क्या हो रहा है गर्मी के कारण, फॉरेस्ट फायर, हीट वेव हो रहा है ना, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर, ऑस्ट्रेलिया फायर, ये सब है ना, उसका मैपिंग किया जाएगा। तो कहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ पे यूज़ होगा। ये मैं दूंगा, मैं बाद में आपको ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो साइंस टेक का, तो ऐसी कई चीज़ें होंगी, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी कमिंग इन द न्यूज़ विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट।
There will be concept, you will be also having facts. Certain facts will be there. All right. So anyway, let me go to the syllabus part of it. ये तो मैं थोड़ा सा मैंने overview दिया है, ठीक है, just to make you aware of the such kind of mission program. So let me just go through what type of syllabus and how you should prepare for BPSC exam. What should be your way out and क्या क्या sources होना चाहिए, कहाँ से आप पढ़ोगे आप, ठीक है. मैं उसके मेन पार्ट पे आता हूँ. तो लेट अस गो टू फर्स्ट थिंग हियर. देखो दो पार्ट यहाँ पर है. वन एरिया इज जनरल साइंस. One area that comes general science, and which you know it is divided in three parts. One is the physics, chemistry and biology. ठीक है, ये थ्री पार्ट है जो स्कूल लेवल में होता है. पहले बीपीएससी में, अर्लियर बीपीएससी यूज्ड टू आस्क 8-10 क्वेश्चन फ्रॉम देयर जनरल साइंस, एंड पर्टिकुलर दिस वन बायोलॉजी. यहां पर 3 क्लास का होता है, 8th, 9th एंड 10th. ठीक है. देखो अब जब 9th-10th क्लास की बुक अब लोगे आप, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, वॉट एवर बोर्ड, विल हैव साइंस, विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3. ठीक है, पूरा रहता है. अब जैसे कि फिजिक्स में क्या है, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ. Then you know friction, work, energy, power, ठीक है. Then you know circular motion, rotational motion, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना. Then you know light and sound, optics, reflection, refraction, total internal reflection, mirage, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. Then you are aware this mirror lenses, convex mirror है ना, concave mirror, ये सब आता है. ठीक है, दिस इज साइंस है. फिजिक्स में. केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो नॉर्मली क्या पूछते हैं, ब्लू विट्रॉल क्या है, ग्रीन विट्रॉल क्या है, बेकिंग सोडा, डे टू डे लाइफ में होता है ना, केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है. बायोलॉजी में क्या होता है, सेल बायोलॉजी. लाइक फॉर एग्जांपल एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट सेल है ना. हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और हमें कहाँ कहाँ दिखता है, अंडर माइक्रोस्कोप. और सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनली होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो बायो में, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सब पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वहाँ क्या है, रेक्टिफिकेशन. उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन चीज़ पता है, एंड देन डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी देयर. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, देन आई गेट बैक टू अगेन. सपोज अगर क्वेश्चन ये है, लेट्स से सपोज द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस वन. What is the function of, let's say, ribosome? ठीक है, and I'm giving 4 choices. To synthesize carbohydrate. Answer आ चुका है, but just I'm giving the answer, the part of the question what comes here. To synthesize lipid. To synthesize protein, to synthesize nucleic acid. सीधा सवाल आ गया. Just the example I am giving there. See, question setter can ask you question different ways. अगर आपको पता है सेल बायोलॉजी में राइबोसोम का क्या रोल है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वे, यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर. और ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, आप स्कोर करोगे, और दिक्कत नहीं आएगी. तो इसका आंसर ये, प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड, यू नो प्रोटीन मेड ऑफ पेप्टाइड. एंड व्हाट इज पेप्टाइड मेड ऑफ, अमीनो एसिड्स, 22 अमीनो एसिड, ये सब बायो में होता है ना, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज होता है ना इसमें जो है वो सारा है. एंड न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए, आरएनए, डीएनए, यू नो डीएनए, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब बायोलॉजिकल वर्ड है. तो वो चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, यू हैव टू रीड दैट पार्ट ऑफ एरिया. जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग दैट. फिर क्या होता है, एक ये चीज़ होता है बायो में. बायो में आप ये भी पढ़ते हो, डिजीजेस, हेल्थ. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस वन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आता है.
डाइट क्वेश्चन आता है विटामिन एंड मिनरल्स का, उसमें क्या होता है, पूरा चार्ट होता है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू दिस वन, विटामिन ए, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए, जस्ट सिंपल इंटरेक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए. ये आप लोगों ने पढ़ा भी हो, कई लोगों ने एग्जाम भी दिया इसके लिए पढ़ा है. व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी. क्या करता है विटामिन ए, करता क्या है. यहाँ पर ये होता है ना, देयर समथिंग कॉल्ड दिस वन, रेटिना जो होता है वो रेटिनॉल होता है, विजन है जो हम देखते हैं. बायो में हम क्या पढ़ते हैं, रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कौन से रोडोप्सिन कहते हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है. वाई वी नीड विटामिन एंड मिनरल्स टू मेंटेन अवर गुड हेल्थ, राइट. एंड व्हाट विल बी द लैक ऑफ विटामिन ए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यू नो नाइट ब्लाइंडनेस इज देयर, क्योंकि रेटिना विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली. एंड द पर्सन मोस्टली कहाँ सफर करता है, डे लाइट एंड नाइट लाइट. डिम लाइट जो होता है ना, दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, रतौंधी बोलते हैं ना हिंदी में, कि रतौंधी हो गया. ऐसे लोगों को अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल है. एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, बोल राधा बोल, एंड वेरी वेरी great actor Kadir Khan. You know Kadir Khan? He was sometimes used to play comedy role. In that movie it was there that the moment it was dark, the evening comes, he lose his vision, blind हो जाता है वो. That was I just recalled that movie there. But it's a severe kind of disorder if somebody doesn't get vitamin A. ठीक है, vitamin C, scurvy, गम्स एंड टीथ, बोन्स वगैरह में आता है ना. बोन्स का आता है विटामिन डी, रिकेट, ये समझ सब पढ़ा हुआ है आपका. यू ऑल हैव स्टडी इन स्कूल डेज, ऐसा नहीं है स्कूल डेज में नहीं अपने. दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, पहले बीपीएससी दिया हुआ तो आपने भी याद किया होगा सारा. ठीक है, यू हैव रेड अबाउट दिस. मिनरल का पता है, आयरन, लैक ऑफ आयरन क्या होता है, क्या कॉज करता है लैक ऑफ आयरन नॉट इन हैविंग डाइट, एनीमिया. एनीमिया के बहुत सारे कारण हैं. क्या क्या कारण है, एक एनीमिया कहाँ से होता है, व्हाट इज एनीमिया. अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा ब्रेक करके करते हैं. व्हाट इज एनीमिया. एनीमिया में क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद पीपल हु सफर विद एनीमिया, क्या इसमें होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी ना. आरबीसी के क्या होता है इसके अंदर, दिस द प्रोटीन हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना. एंड द सेल इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये 3 सेल्स होते हैं ना, आरबीसी कम होता है. अब जैसे एनीमिया का एक कारण क्या है कि अगर ये विटामिन, कौन सा विटामिन नहीं है, विटामिन, मैं विटामिन की बात करूँ, कौन सा विटामिन नहीं है, नहीं आयरन तो है, विटामिन भी है, कौन बताए कौन सा विटामिन नहीं होने पे एनीमिया भी हो सकता है. गुड, वेरी गुड. इसमें B12 आता है, साइनो कोबालामाइन, B6, B12, विटामिन बी भी होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है. देन एनीमिया में बी कॉज बाय नॉट हैविंग आयरन इन द फूड डाइट, है ना. और एक कॉज और होता है एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. इसका जो है ये भी है जेनेटिक. क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल में, आरबीसी, आरबीसी शेप कैसा होता है, हाँ, इट बिकम लाइक अ सिकल. सी आरबीसी जो है ना, आरबीसी लाइक दिस डिस्क, ये आरबीसी का शेप होता है. क्या होता है सिकल सेल में, इट बिकम लाइक दिस. ये जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है, दैट इज फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन. और मैंने ये क्यों टॉपिक उठाया, ये बीपीएससी में आ सकता है. क्यों, इंडिया इज सफरिंग विद एनीमिया, एनीमिया के केसेस बढ़ रहे हैं. आज भी आप जाओगे ट्राइबल एरिया जो है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होता है. आपको पता है अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं वो लिंक करता है हमारा जेनेटिक रेस, वहाँ पर आता है. और साथ साथ क्या हो रहा है, अभी क्या रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, मेल नरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन होता है ना, जिनको भोजन नहीं मिल पाता, आयरन, ये विटामिन और मिनरल नहीं मिल पा रहे, तो दोज यंग चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी अनेमिक. ठीक है, ये चीज़ है ना. अब इसमें कई बार क्या होता है, अब हेल्थ और डिजीज में क्या पढ़ते हो, गवर्नमेंट प्रोग्राम पढ़ते हो आप, यू रीड अबाउट सर्टेन गवर्नमेंट प्रोग्राम.
गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन समवेयर, राइट? अभी कौन सा ऐसा प्रोग्राम है टू टैकल द प्रॉब्लम एनीमिया इन इंडिया? एनीमिया के पर्सन हैं यहाँ पर, उसके लिए कौन कौन से? हाँ, मिड डे मील स्कीम, वेरी गुड। मिड डे मील में क्या होता है? स्कूल में बच्चों को देते खाना, नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन। तो वहाँ केयर किया जाता है, आयरन होना चाहिए राइट अमाउंट में। एक आपको पता है आंगनबाड़ी, यू नो, अंडरस्टैंड आंगनबाड़ी, वेर इन द चिल्ड्रन आर केप्ट इन आंगनबाड़ी, देर ऑल्सो गिवन फूड, है ना, फूड मिलता है, फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं, जहाँ आयरन वगैरह सप्लीमेंट होता है, देर गिवन सप्लीमेंट। और स्कूल में एक और होता है, सरकारी स्कूल में टैबलेट दिए जाते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, बीच बीच में टैबलेट खिलाया जाता है ना, उसमें आयरन एंड जिंक होता है, इसको बोलते हैं आयरन फॉलेट, फॉलिक एसिड। टैबलेट दिए जाते हैं बच्चों को, यंग बच्चों को दिए जाते हैं, क्यों? सो दैट दे आर नॉट सफरिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना, वहाँ पर ये चीज़ है। तो आपको ऐसे कनेक्ट करना होगा। बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बेसिक बायोलॉजी पूछा जाएगा और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम भी पूछा जाएगा। और खासतौर कहाँ आपको पढ़ना है? स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में स्टेट गवर्नमेंट है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना यहाँ पर ब्लॉक में। कल जाके आप जो वीडियो बनोगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, तो आपको वहाँ पर काम करना होगा ना। तो वहाँ पर अब वो कौन सी योजना होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और स्टेट का भी होता है, तो दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। अब वहाँ जाके तो नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता सिकल सेल एनीमिया, आई डोंट नो व्हाट इज आयरन, है ना, वो चीज़ को जानना है वहाँ पर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो बायो में क्या क्या है? सेल बायोलॉजी, हेल्थ, डिजीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल बायो में डिजीज में आप क्या पढ़ते हो? बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब डिजीज होता है ना। अब जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस, लेट्स से टीबी, जस्ट जीके क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉज टीबी इन ह्यूमन बीइंग? ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? भारत में है ना टीबी का केसेस बहुत है। किससे होता है टीबी? बताओ कौन सा, बैक्टीरिया या वायरस है? बैक्टीरिया। तो विच बैक्टीरिया? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरिया? हाँ, साइंटिफिक नेम आप बताना है। साइंटिफिक नेम, लेट मी जस्ट राइट, साइंटिफिक नेम विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम, दिस इज साइंटिफिक नेम ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज साइंटिफिक नेम। कहाँ भी ये सब पढ़ते हो अब नाम सब? कॉजेटिव एजेंट, पैथोजन, इन द बायोलॉजी बुक, बायोलॉजी बुक गिव्स यू द नेम देयर, ठीक है, टीबी एंड इज अ बैक्टीरियाज नेम, माइकोबैक्टीरियम। कहाँ अफेक्ट करता है? लंग्स, एक होता है लंग, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, बट रिमेंबर दैट दिस बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अदर बॉडी ऑर्गन ऑल्सो, है ना। कई बार ब्रेन टीबी भी होता है, ब्रेन कि बैक्टीरिया थ्रू ब्लड गोज टू ब्रेन मल्टीप्लाई, बट नॉर्मली कहाँ होता है? लंग टीबी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी होता है ना। बिहार में भी है, बिहार में भी ट्यूबरक्लोसिस केसेस है, वहाँ पर आता है। अब जो टीबी होता है, तो टीबी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या इलाज होता है पता है? बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एमडीआर टीबी के बारे में। अभी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। एक तो क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं ना। अब क्या होता है जब हम गैप करते हैं, व्हेन वी गिव अ गैप टू द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट। और अभी क्या हुआ पिछले 20-30 सालों में, आफ्टर सो मेनी एंटीबायोटिक्स इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स, ठीक है, मल्टीपल ड्रग्स से वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग दवा है असर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम आता है ना। अब जैसे ये चीज़ है एमडीआर टीबी, मैंने बताया। व्हाट आई वांट टू से हियर, देयर इज वन प्रोग्राम कॉल्ड डॉट्स, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी प्रोग्राम है, डॉट्स बोलते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी सिस्टम। इसको डायरेक्ट सुपरविजन में रखा जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड दिस थेरापी सिस्टम इज देयर। दैट मीन जब तक बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ तब तक दवा लेना होता है विदाउट स्टॉप। ये 1.5 साल तक चलता है, 1.5-2 साल तक। और ये मैंने अभी क्यों रेज किया है, वाई आई मेंशनिंग हियर, आज ही टुडे इन द आफ्टरनून आई टॉक टू डॉक्टर सुमित राय, इज माई फ्रेंड, भभुआ, यू नो भभुआ, भभुआ रोड है ना प्लेस जो है, ही इज़ अ प्रोफेसर देयर। तो बातचीत हो रही थी और आज मुझे जान के मिला, मैं ये सच्चाई कहानी बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं, सच्ची बात है। और बताया कि भाई मैं गंगाराम में हॉस्पिटलाइज था, गंगाराम यू नो दिल्ली में है, तो मुझे एमडीआर टीबी हो गया था। बस सरप्राइज कैसे हुआ, तो वही है, डॉक्टर बोला कि मुझे बुखार काफ़ी दिन तो बुखार सब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हॉस्पिटल गया वहाँ पर, और ही वेंट टू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट। तो वहाँ उसको डायग्नोस किया गया टीबी। अब वो टीबी कौन सा, नॉर्मल टीबी नहीं, एमडीआर टीबी।
तो व्हाट ही सेड, मैंने पूछा भी कैसे हो गया, तो कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्टैक्ट में तो आया होगा. हाउ डू वी गेट टीबी, टीबी कैसे होता है, एयर ड्रॉपलेट वगैरह, समवेयर ही वुड हैव गॉट एक्सपोज टू सम पर्सन. अब वो डॉक्टर बोला मे बी ही मे बी असिम्टोमेटिक, यू नो असिम्टोमेटिक, कि बैक्टीरिया विल बी देयर और लक्षण नहीं, सिम्टम नहीं हो, जैसे कोरोना में था ना, तो असिम्टोमेटिक एंड ही गॉट इन्फेक्टेड. एंड यू नो व्हाई आई टेल यू दैट, सी टुडे वी ऑल आर इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट, राइट. सब रहते हैं ना, कहीं पर क्राउडेड प्लेस में जाते हैं ना, भीड़ भाड़ की जगह पे, लेकिन हमें टीबी तो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, उसका दो कारण है, द टू रीजन्स. वन इज आवर इम्यूनिटी, आवर इम्यून सिस्टम. इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया इज देयर. ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास डिजीज के वायरस या बैक्टीरिया नहीं होते, होते हैं, बट सिंस आवर इम्यूनिटी इज सो स्ट्रॉन्ग वी आर एबल टू रेजिस्ट इट, वी डोंट गेट द ट्यूबरक्लोसिस. आप हमेशा याद रखना, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है दे आर द वेरी ससेप्टेबल टू ट्यूबरक्लोसिस. इसीलिए इंडिया में बहुत सारा डेथ HIV TB से होता है. किससे होता है, HIV TB से होता है. व्हाट इज HIV, यू नो, वेयर द इम्यून सिस्टम बिकम लोअर. अब उन जिनका इम्यूनिटी कम है तो टीबी तुरंत अटैक करता है एंड दे डाई ऑफ दैट डिजीज, राइट. और दूसरा रीजन होता है वैक्सीनेशन, यू नो वैक्सीन. तो आप लोगों को वैक्सीन लगा हुआ है, मुझे बताओ कौन सा वैक्सीन दिया गया टीबी के लिए. इज अ वैक्सीन विच इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट गेटिंग द ट्यूबरक्लोसिस. BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ. इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस. वाई इट इज कॉल्ड बैसिलस, इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. बैसिलस क्या होता है, रॉड शेप्ड, उसको वो माइक्रोस्कोप देखते हैं वहाँ पर. देन कैलमेट, कैलमेट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से हुआ है. ग्यूरिन, दिस इज द नेम ऑफ द वैक्सीन, इज नेम्ड आफ्टर द इंस्टीट्यूट विच हैज मेड द वैक्सीन. बच्चा जब जन्म होता है ना, इन्फेंट, दो चीज़ बहुत जरूरी होता है, एक होता है पोलियो एंड सेकंड BCG. आपने देखा हॉस्पिटल बच्चा जब होता है, इवन वो 2-3 दिन का बच्चा, उसको ड्रॉप दिया जाता है पोलियो का, और सबसे इमीडिएटली BCG लगाया जाता है. तो क्योंकि वाई चिल्ड्रन इज वेरी वेरी वीक इन इम्यून सिस्टम, तो दे आर गिवन टू द BCG देयर. अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो अभी लाइफस्टाइल हो रहा है ना, हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ता जा रहा है. अब क्या बात हो गया है, अब जरूरत क्या हो गया, एडल्ट को भी BCG देना. एडल्ट, वी आर एडल्ट ना, तो अभी हम लोग भी सबसे पहले टीबी का, हमारे बचपन में लगा होगा BCG, है ना. कई बार क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट के टाइम में उसका एफिकेसी कम हो जाता है. अब सोचो उनको भी तो लगा होगा ना, मेरे दोस्त को भी तो लगा होगा, फिर कैसे टीबी हो गया, इसका मतलब वो जो इम्यून सिस्टम काम करना बंद हो गया. देन ओनली ही गॉट द ट्यूबरक्लोसिस, राइट. तो ये सब चीज़ों को कनेक्ट करना है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव एजेंट, व्हाट आर द सिम्टम्स. मतलब आपको अगर पूरा 360 डिग्री पता है तो ये BPSC में कोई भी क्वेश्चन ट्यूबरक्लोसिस आता है, यू विल बी वन टू सॉल्व इट. ठीक है, ये समझे. तो इसमें क्या होता है, इन बायोलॉजी यू स्टडी अबाउट लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉलरा, यू नो विब्रियो कॉलरी होता है ना, तो जो डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, सारा चीज़ें होता है. फिर क्या होता है वायरस का, हेपेटाइटिस, HIV, ये सब वायरल इन्फेक्शन है. ठीक है. प्रोटोजोआ होता है, जैसे मलेरिया, तो मलेरिया इज कॉज बाय व्हाट, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया. किससे मलेरिया होता है, कॉमन है ना. टुडे इन सोसाइटी वी हैव मलेरिया ना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये कॉमन चीज़ है. और ये BPSC में आता है क्वेश्चन. अब आप कुछ मत करो, आप आज जाके साइंस टेक का पिछले 10 साल के पेपर देखो आप, हेल्थ एंड डिजीज 100% क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, देर आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो नाउ टेल मी दिस मलेरिया, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट, व्हाट इज, हाँ नहीं, फीमेल एनोफिलिस इज अ वेक्टर, इज अ कैरियर, बट आई एम आस्किंग पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या इसका नाम है, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम बोलते हैं. 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्ट्रेन, फैल्सीपेरम, वाइवैक्स, मलेरी, ओवली. लेकिन इंडिया में क्या आता है, फैल्सीपेरम. व्हाट यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड. और एक आता है वाइवैक्स. ये बैक्टीरिया नहीं है, वो, दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज नॉट अ वायरस. इन बायोलॉजी व्हेन वी स्टडी अबाउट kingdom, so it is comes into protozoa.
टैक्सोन पढ़ते हैं 5 किंगडम में, मोनरा, प्रोटोजोअन्स, है ना, वो प्रोटिस्ट बोलते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। देन कम्स व्हाट? प्लांट, फंजाई, एनिमल किंगडम, ये पढ़ते हैं ना, सो इट इज अ प्रोटोजोआ। हाँ, बट फीमेल एनोफ्लेस मॉस्किटो इज अ कैरियर, इसको बोलते हैं वेक्टर विच बाइट देयर, ठीक है। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लेता हूँ मैं, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन हियर, शैल आई चेंज द पेज? ओके, अभी न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट नाम छाया हुआ है, ये चल रहा है ना, राइट नाउ इज गोइंग करंट न्यूज, और ये बीपीएससी में भी आ सकता है, फिल्म से क्वेश्चन आ सकता है, वेस्ट नाइल फीवर, ये वायरस है ना। नाउ टेल मी, नाउ आई एम सिंपली आस्किंग द क्वेश्चन, वायरस, नॉट पैरासाइट, not protozoa, no bacteria. How it comes to human being? Birds. इसका कैरियर है क्या? ये वेक्टर है? तीन तरह के मॉस्किटोज होते हैं, एडिस, एडिस एजिप्टी विच कॉज डेंगू एंड चिकनगुनिया, एक होता है क्यूलेक्स, एंड फॉर मलेरिया इज अ एनोफ्लेस, फिनोफ्लेस, है ना, वेक्टर इज। कई बार डिजीज क्या होता है? जूनोटिक। व्हाट इज जूनोटिक? एनिमल टू ह्यूमन। तो नाउ टेल मी, फॉर एग्जांपल, ये वेस्ट नाइल फीवर जो अभी न्यूज में आ रहा है, केरला में है ना, कहाँ पर हुआ है? केरला में। क्या ये जूनोटिक है? क्या ये एनिमल टू ह्यूमन पे आता है? अभी somebody has said bird, क्या इट कैन कम फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन? जूनोटिक आ सकता है। व्हाट अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन? जैसे अगर मुझे वेस्ट नाइल फीवर हो गया, कैन आई ट्रांसमिट टू हिम इफ ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मी? क्या वेस्ट नाइल फीवर और द वायरस कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम माई बॉडी टू हिज बॉडी? नो, देयर इज नो ह्यूमन ट्रांसमिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ मलेरिया, I cannot transmit malaria to another person through contact, through air, through food, through water. Malaria will be transmitted to him only if the same mosquito which has infected my body and that infected mosquito bite his body. Then the malaria will go there. तो उसको बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। अब ये सब बायोलॉजी है ना, दिस ऑल आर द बायोलॉजी पार्ट विच वन नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। बट दिस इज वेयर, दिस इज द करंट अफेयर्स। ये बायो बुक में नहीं होगा। वेस्ट नाइल फीवर और वेस्ट नाइल वायरस विल नॉट बी इन बायो बुक। बायो बुक विल गिव यू द नॉर्मल ट्रेडिशनल डिजीजेस, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क दिस वन, ये भी केरला जुड़ा हुआ है, इज ऑल्सो लिंक्ड विद केरला, निपा वायरस, राइट, निपा, राइट, अगेन केरला वाज देयर, निपा वायरस। नाउ माय क्वेश्चन, हाउ निपा वायरस come to humans? Yes, very good. Which is the carrier? Fruit bat. So this is zoonotic. And sometimes, you know, pig also. You know how it happens? केरला में क्या होता है, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, शाम के टाइम गांव में जाओ, ताड़ी मिलता है, ताड़ी, ताड़ी पता है ना, तो वो बैठ जाते पूरा एकदम हंडी उंडी लेके। तो इन केरला इट इज कॉल्ड टोडी। से टोडी इज अ मलयाली वर्ड, राइट, टोडी। सो नाउ टोडी, सो देयर आर टोडी, सो पीपल हु वेंट टू ड्रिंक द टोडी गॉट इन्फेक्टेड विद निपा वायरस, बिकॉज टोडी इज मेड फ्रॉम वेयर? द फ्रूट। कौन सा फ्रूट होता है? दैट पाम है ना, पाम होता है ना, पाम फ्रूट। नाउ इमेजिन द फ्रूट बैट, दैट बैट, चमगादड़, which has infected the fruit of the palm tree, and that same fruit infected with the virus, right, that is used for making that liquor. This is liquor only. Then the person who will drink that liquor will get the virus, Nipah virus, and these are fatal. Fatal means can cause death. Person can die. है ना ये चीज? तो ये जूनोटिक है, ये this is based on the animal transmission. Corona. Now my question is, corona, COVID-19 zoonotic from animal to human? COVID, corona virus जो भी न्यूज़ है, क्या ये zoonotic है? Is it zoonotic? No, there is no proven. WHO, you know, WHO has not given that kind of confirmation that it is a zoonotic. But there were, you know, theories. It has come from bat, it has come from pangolin. Like in China, you know, China, Wuhan,
There was a number of theories, no? कि how COVID spread worldwide. One theory was lab-made virus from Wuhan was came to the market and everywhere. Second theory was that in China they eat animals, meat. So there is something called animal market. This is meat wet market. From there it was spread there. And third theory is that it is an evolved form of SARS. SARS. Earlier virus was there, severe acute respiratory syndrome. It has got evolved. Flu virus. What is corona? Flu virus. Influenza. ये चीज़ है ना. तो ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करना है. एंड इन बीपीएससी में क्या होगा? डिजीज का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा. यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन. Right? Are you getting my point? You will be getting direct question there. So bio, see when I say this bio part, biology part. So biology part, let me add here, just a part which I mentioned here. For biology, at least you have to read 11th and 12th. See for normal science, you have to go through 8th, 9th, 10th. But again remember that 8th get repeated in 9th and 10th. अगर हम 9th, 10th अच्छे से कर लो, तो आपका ये 3 एरिया कवर होता है. और and 11th and 12th, that you need biology part. Cell biology, health, disease, tissues, then comes genetics, plant physiology, है ना, botany, ये सारे एरियाज होते हैं. तो मैं अभी सोर्स बताता हूँ. ठीक है, एक चीज़ ये है, विच बुक यू हैव फॉर जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई कम देयर. विच बुक यू हैव फॉर जनरल साइंस? एनसीईआरटी. ठीक है, वन एरिया इज एनसीईआरटी हियर. लेट्स से वन एनसीईआरटी पीपल फॉलो देयर, ऑल राइट. बट एनी गाइड बुक you have? So NCERT is one there, but now September will be exam, right? May, this month is May, right? June, July, August, September. और पढ़ना तो बहुत कुछ है, केवल साइंस टेक तो नहीं पढ़ना है. You have to read geography, history, बिहार स्पेशल सब पढ़ना है. तो you have to be prepared with that. NCERT, see अगर ये NCERT कहीं जिस्ट मिल जाता है, summary, ठीक है, तो that you can read from there. मार्केट में आप देखना, बट समटाइम पीडीएफ वगैरह मिल जाता है ना. हम अरिहंत का जैसे है, इसमें एक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का आता है. और एक दैट कई लोग ये फॉलो करते हैं, लूसेंट की जो बुक आती है ना, साइंस का फॉलो होता है ना, फॉलो होता है लूसेंट का. दिस साइड एनीबडी यू हैव गॉट द बुक फॉर साइंस? हाँ, दिस साइड नो, दिस वन साइंस की बुक लूसेंट है. हाँ, तो भाई कोई भी ऐसी बुक, आई सी मार्केट, इफ यू गो टू मार्केट गेट हंड्रेड्स ऑफ बुक्स टुडे. एवरी पब्लिकेशन हाउस हैज गॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सारा नहीं पढ़ना, कोई भी एक किताब लेना है विच कैन गिव यू ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अच्छा, एडुटेरिया ऑल्सो कम आउट विथ पब्लिकेशन अभी, है ना. एडुटेरिया पता है क्यों प्रॉपरली पिकअप किया है, विच आई रियली लाइक्ड, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर विथ ऑल ऑफ यू. One thing, good thing about Eduteria, what I found, they are giving you those kind of content there, prepared content. ठीक है. तो what I have, नीचे में जो मैं बैठा हुआ था कि आपके पास जो prepared material मुझे एक बार रिव्यू करने के लिए दे दो, so that I can review those material, कुछ addition, deletion, some modification, so that you can get that thing here. ठीक है. बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागना. That's my saying is that you have to, कहाँ अपडेट होना है आपको? करंट अफेयर्स. You have to update with the current aspect. Are you all able to understand? So I am looking to those material. So you will be getting that. When the normal classes will be there, you will get the material there. But if you have book, you read about it. NCERT or Lucent, whatever, you should read about that. ठीक है. And then what I've said, look at the question paper. ठीक है. कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी होते हैं, पता है, जैसे कि दृष्टि का है, क्विक फाइल करके आता है, क्विक कलर बुक होता है, कभी बाजार में आप देखना ऊपर. तो ये मैं कोई इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है. लोग करते हैं, विजन पढ़ते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पढ़ते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है. मेरा कहना ये है कि कहीं से कंटेंट अच्छा मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैटर विच कोचिंग इंस्टीट्यूट और विच वेबसाइट और हु इज़ द टीचर, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द कंटेंट, बेटर कंटेंट. तो एक क्विक फैक्ट या क्विक बुक करके आता है, आप देख रहा हूँ, उससे साइंस का होता है, कलर्ड बुक है वहाँ पर. किसी पास है यहाँ पर? है तो हाँ, ठीक, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो. दैट यू कैन फॉलो दैट, राइट. हाँ, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. बड़ी एजाज की प्रीलिम्स का है. जनरल साइंस क्वेश्चन कहाँ आएगा? प्रीलिम्स में आएगा, मेंस एग्जाम में नहीं आएगा. मेंस एग्जाम में ज़्यादा आता है टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है. ये जनरल साइंस आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है. मेंस पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, वेर इट हेल्प्स इन मेंस एग्जाम,
कई बार क्या होता है ना, अप्लाइड साइंस, डे टू डे लाइफ साइंस। तो आपका साइंस क्या होता है, फाउंडेशन होता है, तभी आप टेक्नोलॉजी समझोगे ना आप। तो वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग में हेल्प होता है। यू विल बी एबल टू राइट आंसर मच बेटर if you have some kind of basic thing. But again remember that you don't have to become scientist. आप तो सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपको तो उस तरह का नहीं चाहिए, बीएससी लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक स्कूल लेवल नॉलेज यू रिक्वायर, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर क्या चीज़ करना है, अप्लाइड लेवल को पकड़ना है। नाउ आई एम कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया, लेट मी गो टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट। नाउ टेल मी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑल्सो देयर। Now in mains exam, it is a part of the pre-exam also, but main exam. But now tell me in mains exam, which paper you have in BPSC, Science and Technology? ये भी बहुत जरूरी है ना, आपको बताओ चाहिए पेपर 2। हाँ, excellent, very good. पेपर 2, पेपर 2 में बताया तो BPSC में क्या है, डायनामिक है, मार्क्स कम आते हैं। Now tell me along with science and technology, which are other subject in paper 2? और पेपर 2 क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और एक और है ज्योग्राफी। चार सब खतरनाक सब्जेक्ट है। Yes, now I'm coming to that. She has given very good, although it is mentioned as a part of paper 2, but the fact is that science and technology has become the part of other papers also. And whenever I teach science and technology, I always say that you can connect science and technology with every area of general studies. Science tech का मतलब नहीं only science and technology. You can connect with history. मैं बताता हूँ कैसे हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। आर्यभट्ट, you know, ancient astronomer, पाटलिपुत्र, he was there ना। उन्होंने क्या लिखा था, आर्यभट्ट सिद्धांतिका, शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एक्लिप्स, ये सब है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट BC 400-600 BC, उस समय की बात है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ना। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे साइंस टेक आता है बताओ, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स टू सच एंशिएंट सिविलाइजेशन। क्या क्या चीज़ है, मेजरमेंट, प्लांट्स, एग्रीकल्चर था ना उस समय। इवन टू टाउन प्लानिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल है। टुडे आवर होम क्या है, यहाँ पर है, स्ट्रीट है ना, रोड, हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, वेयर इट वाज देयर 2000 BC बैक, 4000 years old, what we call today civil engineering, town planning was there. हिस्ट्री में कहाँ पढ़ते, मेटलर्जी, लाइक यू नो मौर्यन पिलर, अशोका पिलर है ना वहाँ पर। अभी भी एक पिलर है, कहाँ है, मौर्यन एज का, महरौली, कुतुब मीनार, यू नो कुतुब मीनार दिल्ली में जो रखा गया है, और खुला रहता है वो, ओपन, और कभी जंग नहीं लगता है उसमें, इट नेवर रस्ट। दैट इज मेटालिक अलॉयज, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो दैट इज हिस्टोरिकल लिंकेज, हिस्ट्री से लिंक्ड होता है। ज्योग्राफी, हाउ द साइंस टेक ज्योग्राफी कम्स, मैपिंग, सैटेलाइट, टुडे वी यूज सैटेलाइट फॉर दैट। इवन यू नो डिजास्टर मैनेजमेंट, वी नीड द हजार्ड मैप एंड ऑल, अगेन द साइंस टेक एप्लीकेशन कम्स, राइट। यस, then economy, how the economy comes, manufacturing segment or whatever, we need the technological upgradation there. So science tech, what she has given, said even last year there was a question in the GS1 paper, science tech वहाँ current aspects से relate करके। और ये याद रखना है, मैंने बताया एक होता है कोर एरिया, जो आपको साइंस टेक का कोर एरिया को पकड़ना है, और दूसरा उसका एप्लीकेशन एरिया। एप्लीकेशन किसी पेपर में हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम GS2 paper, it can ask few question linked with the other papers also there. But now let me bring here, see first thing यहाँ paper 2 में space है, space and astronomy, space science and technology, which I started in the beginning there, कि whatever mission, Chandrayaan mission, Gaganyaan mission, but before that we have to also learn basic concept. What are basic concept? What is an orbit? What is a satellite? फिर एक चीज़ पता है, PSLV, GSLV, polar satellite launch vehicle, जो सिंक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्रायोजेनिक इंजन, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन, वी आर यूजिंग GSLV Mark 3, Mark 2, है ना। और क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन। डायरेक्ट क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन आ रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक एरिया, दूसरा ये है डिफेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, व्हाट कम्स टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि 5,
What is Agni 5? When you come to Agni 5, what is Agni 5? Anyone in the classroom, what is Agni 5 missile? Surface to surface ballistic missile. Good. Give me some more information there. 5,000 plus or 5,000 kilometers? Yes, I was looking for that word, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. And what he has said is very right, surface to surface. Long range, what is called long range missile is there. But you know BrahMos, cruise missile. India has built cruise missile, India Russia together, BrahMos missile. कई बार आप न्यूज़ में जब पढ़ते हो प्रहार मिसाइल, कौन सी एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, डेवलपमेंट है ना. देन यू नो दिस वन, अपार्ट फ्रॉम दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी, व्हाट यू कम अक्रॉस? सबमरीन. व्हाट इज अरिहंत? INS अरिहंत. हाँ, सबमरीन. व्हाट टाइप ऑफ सबमरीन? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. इट प्रोपेल्ड बाय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिएक्टर. अभी हाल में क्या आया हुआ है, अभी हाल में न्यूज़ में ये भी बहुत आ रहा है, स्कॉर्पिन, फ्रांस. इंडिया एंड फ्रांस, वी हैव नाउ डेवलप्ड 6 स्कॉर्पिन क्लास फास्ट अटैक सबमरीन. मजगांव डॉक लिमिटेड, कलवरी, खंडेरी, करंज, है ना, वेगा, वगीर, वाक्षीर, ये बनाया गया. ये सब न्यूज़ में रहता है ना, सारी चीज़ें जो है. मैं और एग्जांपल देता हूँ. कई बार क्या होता है, ये सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, सोनार सिस्टम. यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड, टॉर्पीडो, अंडर वाटर काइंड ऑफ वेपन. और इंडिया में भी बनाया गया वरुणास्त्र, राइट. वरुणास्त्र इज द टॉर्पीडो विच कैन डिस्ट्रॉय सबमरीन, अंडर द ओशन सबमरीन. तो यहाँ पर टॉर्पीडो वगैरह होता है यहाँ पर. फिर एयर डिफेंस में क्या आता है, फाइटर जेट. अब जैसे फॉर एग्जांपल तेजस है ना, फाइटर जेट में तेजस जो है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस. कौन सी कंपनी ने बनाया तेजस को? विच कंपनी हैज बिल्ट तेजस? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना. बट विच आर द फाइटर जेट्स इंडिया हैव बॉट फ्रॉम आउटसाइड? राफेल फ्रॉम फ्रांस, है ना. फिर मिग है, मिग किससे? रशिया से. मिग सुखोई. एंड मिराज राफेल फ्रांस से. बट तेजस इज इंडिजिनस, जो हमने बनाया. कई बार यू रीड अबाउट हेलीकॉप्टर्स, है ना. जैसे अभी आजकल काफ़ी न्यूज़ में प्रचंड, रुद्रा, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि BPSC में पूछा गया, UAV, ड्रोन टेक्नोलॉजी, है ना, काफ़ी न्यूज़ में. और आपको ये भी पता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हम सिविलियन यूज़ भी कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़ भी हो रहा है ना. कहाँ पे होता है, देखा है कभी? शादियों में देखा है, ऊपर उड़ रहा होता है ना. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. इवन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम सर्वेलेंस, पुलिस वॉज यूजिंग द ड्रोन, होता है ना कई बार. तो वो सिविलियन एप्लीकेशन है, बट मिलिट्री एप्लीकेशन है ड्रोन अटैक, है ना. वी कैन अटैक विद ड्रोन, राइट. वी कैन सर्वे द बॉर्डर एरियाज. अभी आजकल हो रहे हैं ना जम्मू एंड कश्मीर के साइड में, बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान, कि वहाँ ड्रोन का स्वार्म और ड्रोन स्वार्म जो है, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी ड्रोन पॉलिसी बना रहे हैं कि कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें ड्रोन को. और ड्रोन कहाँ है? अमेरिका हैज़ यूज इन इराक, अफगानिस्तान, ईरान के साथ चल रहा है ना अभी. नाउ यू नो, ईरान इसराइल का, तो वहाँ भी बहुत, तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन का. तो वो डिफेंस में कई डायनेमिक आ जाता है, ठीक है. तो ये एरिया आता है. फिर इसमें क्या आता है, थर्ड कहाँ पर है, थर्ड टॉपिक बताओ क्या है? न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सी कई बार सिलेबस में मेंशन होता है, कई बार नहीं मेंशन होता है. सी सिलेबस क्या है? विंडो है. व्हाट इज गिवन सिलेबस यू टू पढ़ना ही है, लेकिन उसके बावजूद जो साइंस टेक में आपको वो पढ़ के रखना होगा. अब जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल. BPSC मेंस में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्टर होता है टुडे वी यूज फॉर पावर जनरेशन. जैसे कि इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर पार्क वी हैव इन कुडनकुलम, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, है ना, कायगा इन कर्नाटका. देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड काकरापार, गुजरात, है ना, न्यूक्लियर पार्क है. एंड वी आर यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, व्हाट इज कूलेंट, व्हाट इज मॉडरेटर, ये सारी चीज़ें उसकी वर्किंग पता होना चाहिए. तो ये एक डायमेंशन है. दूसरा डायमेंशन क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. यू नो होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर भाभा का जो है, फिल्म देखते हो? नहीं देखते हो, खाली पढ़ाई. अच्छा, आजकल OTT का प्लेटफॉर्म है, OTT पता है ना,
नेटफ्लिक्स, अमेजोन, नहीं देखते हो? यू डोंट वॉच? नहीं, कुछ चीज़ें देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता दिन भर मिलकर नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। सोनी लीव हैज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट बॉयज। पता है? अगर आपने देखा होगा तो you would have found that Rocket Boys is basically biopic, biopic on, I will say, 3 great Indian scientists. First is Dr. Vikram Sarabhai, who is the founder of Space Program of India. Second is right now what I've given the name, Homi Jahangir Bhabha. Dr. Bhabha, his immense contribution for our nuclear program. And immense contribution. Dr. Homi Jahangir Bhabha. And third man is great man, Dr. Kalam, Dr. APJ अब्दुल कलाम, है ना, उनके लाइफ पे वहाँ पर है, उसमें पोखरन दिखाया गया, पोखरन। अगर वो सीरीज 2 में आप जाएंगे ना, वो सीरीज होता है ना, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, हाँ कब से, हाँ वेरी गुड, सीवी रमन, रामन इफेक्ट, नोबेल प्राइज, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उसमें, राजा रमन्ना, बहुत देखा, बट ये 3 प्रोमिनेंट नाम दिखाए, और उसमें आप देखेंगे इट हैज गिवन अबाउट आवर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, पोखरन। सी देखो, कभी बार क्या होता है, वेब सीरीज मूवी क्या होता है, मसाला होते हैं, फिक्सलाइज करते हैं ना, नाम बदल देते हैं, कुछ चीज़ें डाल दिया जाता है, वो अलग बात है, बट समटाइम्स इट गिव्स यू काइंड ऑफ बैकड्रॉप। आपको पता है जॉन अब्राहम की फिल्म थी परमाणु, वहाँ भी था ना दिस न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, पोखरन जो हमने किया था। इंडिया हैज कंडक्टेड 2 टेस्ट, पोखरन 1 and 2, 74 में, 1974 we did that in Rajasthan, underground test, and then in 1998 we did another one, and after that we declared we will not conduct any test. That's what India's stand is there. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब जैसे मैंने बताया, इट कैन बी आज इन पेपर 1, इट कैन बी आज अदर पेपर। वाई? ये किससे जुड़ा हुआ है? जियो पॉलिटिक्स, दोनों है ना, IR, यू कैन कनेक्ट विद द एरिया देयर। सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एंगल, एंड अगेन BPSC एग्जाम यू कैन गेट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आई कैन से दिस आर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एरियाज, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी का सोसाइटल यूज भी बहुत सारा है, जैसे कैंसर, कैंसर है ना, कौन सा हॉस्पिटल है पटना में कैंसर का? भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है ना। क्या यूज़ करते हैं वहाँ कैंसर के लिए? रेडियो आइसोटोप, कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 वगैरह करते हैं ना, कीमोथेरापी बोलते हैं ना, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, वो क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो दे हैव वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर which one need to understand and read about it, right? So let me now go to the next one. See, apart from this one, the 4th area which you have to prepare this one, biotechnology and health. But biotechnology area, I'll teach you with genetics. उसका रीज़न है कि पहले आप बायो पढ़ो, आप बायो में जेनेटिक्स आएगा, मोलिकुलर बायोलॉजी, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दिस वन, GM crops, genetic modification, and what we use here technology, we use a technology called recombinant DNA technology, genetic engineering. और इंडिया में भी कौन सा GM crop हम आज यूज कर रहे हैं? अगर if you look at, तो one is this one, BT cotton. See, although BT brinjal, BT mustard और सब बनाया गया है, लेकिन आज हम क्या उपजा रहे हैं? BT cotton, बाकी सब अभी सस्पेंडेड मोड में। What is the meaning of the word BT? ये BPSC के prelims से अगर नहीं याद रखना आप, there will be science and technology question in pre-exam also there, and that can be current affairs also there. Like this word BT, this stands for a bacteria that is a Bacillus thuringiensis. ये सॉइल बैक्टीरियम है। क्या किया वैज्ञानिकों ने? इसमें एक जीन है, क्राई जीन बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंदर एक जीन है, क्राई 1AC जीन है, जीन एंड DNA. दिस जीन मेक अ प्रोटीन, इट मेक्स अ प्रोटीन विच किल बॉलवर्म, बॉलवर्म होता है ना, जो कि कॉटन को पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया? व्हाट द साइंटिस्ट डिड, टुक आउट दैट जीन एंड इंसर्ट इनटू द कॉटन। कॉटन इज अ प्लांट, तो प्लांट क्या कर रहा है? वही प्रोटीन को बना रहा है, और तो जब बॉलवर्म इन्फेक्ट करेगा तो बॉलवर्म विल ईट दैट प्रोटीन एंड डाई डेथ, जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइडल इफेक्ट, यानी कि आपको केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना होगा। ये मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, बट यू नो इट हैज अ नेगेटिव साइड ऑल्सो। नेगेटिव साइड भी है ना, बहुत सारे डिबेट है,
कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बेनिफिट क्या है कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करना होगा, यही चीज बेनिफिट आता है। अब एक और चीज न्यूज में है, you know what is this DMH11? What type of plant is this? Not rice, राइस नहीं है। बताओ कौन सा प्लांट है ये? मस्टर्ड है। इसका फुल फॉर्म ये है, धारा मस्टर्ड। धारा पता है ना, धारा बाजार में मिलता है, कंपनी धारा ऑयल, मस्टर्ड हाइब्रिड। ये जीएम मस्टर्ड है। एक हाइब्रिड होता है ना, क्रॉस ब्रीड, इंटरब्रीड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लैब में इसको बनाया गया है। सरसों की जब बात आती है तो कौन कौन सा स्टेट है? नाउ आई एम आस्किंग ज्योग्राफी क्वेश्चन, विच आर द स्टेट विच ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया? राजस्थान, ठीक है, हाँ, हरियाणा और पंजाब, और व्हाट अबाउट बिहार? बिहार में मस्टर्ड है ना? कौन से पार्ट में? नॉर्थ बिहार में। ये याद रखना, बिहार में मस्टर्ड सरसों, कभी जाना गांव और साइड में, है ना, पीले फूल आपको दिखेगा वहाँ पर जो मस्टर्ड का जो है। बट यस, विच आर प्रोमिनेंट स्टेट? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, है ना, वेस्टर्न यूपी। तो जैसे मस्टर्ड की बात आती है तो सीधा दिमाग में आता है पंजाब, सरसों दा साग मक्के दी रोटी, है ना, सरसों साग बोलते हैं ना पंजाबी लोग, दबा के दम ढाबा में खा रहे हैं ना। इमेजिन करो भविष्य में जीएम सरसों दा साग एंड जीएम मक्के दी रोटी। मक्का यू अंडरस्टैंड, कॉर्न, भुट्टा, है ना। और अमेरिका में तो जीएम भुट्टा खाते हैं वो लोग, यहाँ तो देसी भुट्टा है, वहाँ जीएम भुट्टा चलता है। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड। तो ये सब चीज़ अब फ्यूचर होने वाला है। अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। DMH11 को अभी होल्ड किया गया है, मैटर इज सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मार्केट में लाने से पहले। और कई बार आपने एक एजेंसी का नाम पढ़ा होगा, दिस नेम, ये बॉडी है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म दिस बॉडी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी। पहले इसको बोलते थे अप्रूवल, ठीक है। तो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेट मी राइट हियर, दिस इज द बॉडी विच इवेलुएट फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल क्या होता है? सेफ्टी, कि वेदर टू गो टू द मार्केट और नॉट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, अप्राइजल मतलब रिव्यू। दिस इज अ टीम ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट which evaluate the safetiness of the genetic modified crop and produce and give the report to the government, है ना, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया जाता है। There it comes there. So what is my point? When you are reading biotechnology from science and technology perspective, you should know the technology and the working of the technology. And then comes what are the other pros and cons. BPSC में कैसे क्वेश्चन आएगा? GM के कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कि वहाँ मेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। प्री में कैसा क्वेश्चन आएगा? कुछ करंट एस्पेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज DMH11, मस्टर्ड, कॉटन, है ना, एग्जांपल्स गिवन देयर, वहाँ पर ऐसी चीज़। फिर मैं और बता रहा हूँ, ये क्रॉप्स हो गया। कई बार आप ये भी पढ़ते हो ना, क्लोनिंग, क्लोन्ड एनिमल, राइट? व्हाट इज अ क्लोन? आइडेंटिकल, हुबहू, सेम टू सेम, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिटी है। इंडिया में बुफेलो को किया गया, यू अंडरस्टैंड, बुफेलो फीमेल बुफेलो है ना, मुर्रा वैरायटी का है। NDRI करनाल, देयर इज अ प्लेस इन हरियाणा कॉल्ड करनाल, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड वी हैव क्लोन्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बुफेलो, गरिमा। गरिमा है, गरिमा हमारे देश की गरिमा है, ठीक है। गरिमा इज अ क्लोन्ड बुफेलो, और गरिमा से बनाया गया करिश्मा, महिमा, है ना, ये नाम है। अब आप बोलोगे कि बुफेलो में क्या है, सब तो एक ही जैसा दिखता है, उसमें आइडेंटिकल क्या बात है? तो आइडेंटिकल कहाँ पर है? जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। तो इसको डेवलप किया गया है यहाँ पर जो है। फिर यहाँ पर ये चीज़ है, लेट मी राइट हियर, विच आर ऑल अवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई एम राइटिंग हियर, थेरेपी में स्टेम सेल, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। स्टेम सेल थेरेपी, व्हाट इज स्टेम सेल? ये सब हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टेम सेल, नहीं पता? स्टेम सेल, यू हैव नॉट रेड स्टेम सेल? यस, okay. Stem cells are programmed cells which can produce body cells, liver, kidney,
ब्रेन, मसल, स्किन, यहाँ एक वर्ड आता है प्लूरीपोटेंट। ये बड़ा यूनिक सेल है जो कि डिवाइड करके बॉडी के अलग अलग सेल को बना सकता है। ये सबसे पहले फॉर्म होता है एम्ब्रियो में, फिटस, जो मदर फिटस होते हैं, देर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। और अभी हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन होता है, इट इज समथिंग कॉल्ड बोन मैरो, इन हिंदी भी से अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इन बोन मैरो वी हैव अ बोन मैरो स्टेम सेल विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग व्हाट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो ब्लड सेल बनते हैं। स्किन में स्टेम सेल होते हैं। क्या मैंने बताया, प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम मीन्स इट कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ बॉडी सेल्स। अब जैसे आजकल क्या होता है, किडनी डैमेज होता है ना, किडनी, और कई बार आपने देखा होगा लीवर सिरोसिस आजकल बढ़ रहा है कि नहीं, लीवर का भी देखा आजकल कितना भी, आज से 20-30 साल पहले ऐसे ही प्रॉब्लम होते थे, अब आजकल देखो कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं लीवर का जो है प्रॉब्लम जो है। उसका रीज़न क्या है, द फूड व्हाट वी ईट, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव गॉट। तो जैसे लीवर डैमेज, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, लीवर ट्रांसप्लांट, तो व्हाट स्टेम सेल कैन डू, कैन ग्रो द लीवर, वी कैन ग्रो द लीवर, लीवर इज वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो वहाँ पे इसका थेरापी आता है। ब्लड, यू नो, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, वी कैन यूज दैट, है ना। और अभी क्या फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, वी कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो, जीन थेरापी, ये सब एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, लेट मी सी हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ टीवी चैनल और न्यूज़पेपर और वट एवर। Report is saying that people are dying of heart attack because of that vaccine. कोविड टाइम जो 2 वैक्सीन था ना, कोवैक्सीन भारत बायोटेक एंड कोविशील्ड भारत बायो, दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या क्या आपका ओपिनियन है हार्ट अटैक को लेकर, क्या ओपिनियन है? ये काफ़ी न्यूज़ में आया हुआ है, एवरी न्यूज़ पेपर इज कवर्ड। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, द साइड इफेक्ट एंड डेथ कॉज्ड बाय कोरोना वैक्सीन? जाम होता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, ब्लड क्लॉट देयर से, देखो आप ये चीज़ याद रखना। इसमें मतलब आपको क्या करना, सी यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी, राइट? यू शुड ऑलवेज हैव ए न्यूट्रल स्टैंड, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ, यू शुड बी देयर, बट देयर आर ऑलवेज प्रॉज एंड कॉन्स बोथ द साइड्स, ठीक है। इसमें सही भी है, गलत भी है, दोनों भी है। यू शुड हैव ऑलवेज हैविंग द बैलेंस व्यू पॉइंट। तो बैलेंस व्यू पॉइंट क्या है? See, any vaccine when you use, there are always some kind of a
kind of side effect. It depends on the person's immune level. That's what we do clinical trials, clinical trials. कई बार होता है severe adverse effect. Severe adverse effect. तो जब कोविड का टाइम लगाया गया तो उस समय भी डेथ हुआ था. ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा होगा आपके आसपास भी ऐसे न्यूज़ होंगे कि वैक्सीन लगने के बाद उनका डेथ हो गया. क्यों? दैट वाज बिकॉज ऑफ द बॉडी थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट whenever we do such kind of vaccine, we always look for larger good than the smaller harm. If we take a sample of 1 lakh people getting the same vaccine, so how many people have died because of side effect? गवर्नमेंट तो हमेशा डेटा पे देखता है ना कि उसमें 10 लोगों की मौत हो गई या एक आदमी का डेथ हुआ है. तो वहाँ पे क्या, अगर वैक्सीन का ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो गवर्नमेंट ऑलवेज गिव द अप्रूवल. और उस समय क्या हुआ था? इमरजेंसी था. इट वॉज इमरजेंसी. कोविड वॉज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. तो उस समय गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया कि कम से कम कोविड से बचने के लिए, स्प्रेड होने से लिए ये वैक्सीन दे दो. बट आई ऑलवेज रिमेंबर दैट नो वैक्सीन इज 100% एफिशिएंट. नो वैक्सीन. आई एम टेलिंग यू साइंटिफिक ट्रूथ. और मैं आपको आज बता दूं, आज कोरोना आ गया ना, हम में से कोई नहीं बचेगा. क्यों? कोविड-19 वायरस म्यूटेशन होता है ना. हमने जो वैक्सीन लिया पुराने स्ट्रेन का लिया है. अब कोई मान लो कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया तो वो एंटीबॉडी काम नहीं करेगा. व्हाट वैक्सीन डज? इट इलिसिट आवर इम्यून बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस. नाउ इमेजिन दैट वायरस हैज चेंज्ड, तो दैट एंटीबॉडी विल नॉट बी एबल टू फाइट. तो वी नीड न्यू वैक्सीन. फिर हमें नया वैक्सीन चाहिए ना. और अभी आपको पता है कोरोना तो इवॉल्व करता जा रहा है, इवॉल्व कर रहा है ना. तो ये चीज़ है. तो कोई इसका हमेशा याद रखना है, मैनकाइंड हैज़ बीन ऑलवेज फाइटिंग विद वायरसेस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इट कैन बी बेसिकली हेल्पिंग अस फॉर सम टाइम बट नॉट ऑल द. कहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा काम करता है बताओ? ऐसे वायरस जो म्यूटेट नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, मीजल, पोलियो. ये सब क्या होता है? स्टेबल वायरस होता है, चेंजेबल नहीं होता है. लेकिन जहाँ वायरस चेंज करता है तो वहाँ वो काम नहीं करता है. ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है. और जो पार्ट मैंने अभी समझाया है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है. लेट मी नाउ गो टू द अनदर पार्ट ऑफ इट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट वन करंट एस्पेक्ट, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. अभी आजकल ये भी न्यूज़ में था, सेम कंपनी. विच कंपनी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. क्या है ये बताओ? ये बजट के टाइम न्यूज़ में था. इंटरिम बजट, इस बार इंटरिम बजट था. कौन सा डिजीज़ के लिए? सर्वाइकल कैंसर. ये सर्वाइकल कैंसर के लिए इसको बनाया गया था. ये हैंग हो रहा है. ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, एंड व्हाट वायरस कॉज सर्वाइकल कैंसर? यू आर अवेयर व्हाट वायरस कॉज सर्वाइकल कैंसर? और एक चीज़ याद रखना, सर्वाइकल कैंसर केवल विमेन में नहीं है, इट कैन हैपन इन मेन ऑल्सो. ज़्यादातर केस विमेन में होता है, सर्विक्स बोलते हैं ना विमेन में, बट ऑल्सो इट कैन हैपन इन मेन ऑल्सो देयर. तो बट विच इज़ द वायरस विच कॉज द सर्वाइकल कैंसर? वायरस का नाम क्या है? ये बीपीएससी में आ सकता है इस बार के एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर. व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस विच कॉज दिस सर्वाइकल कैंसर इन ह्यूमन बॉडी? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. क्या नाम है वायरस का? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अभी इसके लिए वैक्सीन डेवलप किया गया है. सर्वाइकल कैंसर दे. Now India, there is a lot of cases of cervical cancer. Now this vaccine can prove to save number of people's life. Right? Now again, the vaccine which is developed by Serum Institute of India, what you will come across the word recombinant vaccine. एक word आता है recombinant, genetic engineered virus. Just like Covishield was a genetic engineered virus, recombinant vaccine developed. तो ये ऐसे चीज़ें जो आप न्यूज़ में पढ़ते हो डिजीज़ के साथ, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट विद बायोटेक्नोलॉजी. ये बायोटेक्नोलॉजी का एरिया, वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, ऑल दिस कम्स देयर. कई बार आप पढ़ते हो जिनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट एंड ऑल दिस, ये सब बायोटेक के अंदर आता है. राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू दैट. सो दैट इज व्हाट कम्स हियर. सो व्हाट आई हैव मेंशन हियर, दिस व्हाट आई हैव मेंशन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी पार्ट. यू हैव टू लिंक विद हेल्थ. ठीक है? हेल्थ पार्ट कम्स हियर. So now let me come to next part here. I think this is the
पॉइंट नंबर 4, राइट। अब मुझे समझ में आया ये क्यों नहीं हिल रहा था, पता है इसके कारण, मक्खी, राइट। सो नाउ लेट्स, सो नाउ इफ यू लुक एट दिस इज द 6th वन, राइट। नहीं, वो बायोटेक्नोलॉजी कितना नंबर था? 4th, 5th वन, राइट। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर? दिस वन। ICT एंड कंप्यूटिंग, बीपीएससी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं बड़ा, अब बीपीएससी बहुत अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, जैसे वायरस इवॉल्व कर रहा है तो बीपीएससी भी अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है। अब वो ब्लूटूथ वाईफाई नहीं पूछने वाला है, कहाँ क्वेश्चन आएगा? 4G एंड नाउ 5G यूज कर रहे हैं ना, सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। टुडे यू हैव सीन द 5G टावर्स यूज हो रहे हैं। फिर एक ये चीज़ है, वी आर यूजिंग वाईफाई, है ना, जो राउटर वगैरह, दिस इज वाईफाई, ये राउटर है ना, विच वी कनेक्ट विद यूजर ID पासवर्ड, बट इज शॉर्ट डिस्टेंस विद इन द रूम, विद इन द बिल्डिंग, राइट। अब क्या होगा फ्यूचर में? लाइट। लेट मी गिव यू एग्जांपल। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, यू ऑल आर अवेयर, सोनम वांगचुक, राइट। हु इज सोनम वांगचुक? He was Sonam Wangchuk. He was in the news. He's an engineer. He's an innovator of Ladakh. 3 Idiot movie, you know, Amir Khan. The character of Amir Khan, Phongshuk Wangdu, was inspired by Sonam Wangchuk. Right? He is a person from Ladakh, and recently he held 21 days climate fast. लद्दाख में डिमांड हो रहा है ना, शेड्यूल का, कौन से स्पेस स्टेटस की डिमांड हो रहा है? 6 शेड्यूल का डिमांड हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में था। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्या न्यूज़ में हुआ है। पहली बार वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, माउंटेन टॉप लाईफाई टावर हैज बीन सेट अप इन लद्दाख। इमेजिन करो, ये माउंटेन है, तो व्हाट दे डिड, दे सेट अप अ टावर हियर, एंड फार अवे यू हैव अ हाईवे। सो मोबाइल टावर इज हियर। आपको ब्रॉडबैंड चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो मोबाइल टावर चाहिए ना। हाउ वी यूज द इंटरनेट ब्रॉडबैंड? मोबाइल टावर्स। दूर में था, 100 किलोमीटर दूर, एंड व्हाट दे डिड, दे यूज द लाइट, लेजर लाइट, यू नो लेजर यू नो द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय शार्प लेजर बीम। लेजर के थ्रू दे कनेक्टेड विद द स्कूल, ही हैज अ स्कूल देयर, स्कूल है ना, सोनम वांगचुक है स्कूल, सिकमोर स्कूल है वहाँ पर, आपने देखा होगा उस फिल्म में 3 Idiot के लास्ट में, वहाँ तक इंटरनेट को लाया गया। अब सोचो आप, इंटरनेट ब्रॉडबैंड थ्रू लाइट, एंड व्हाट ही यूज अ टावर, माउंटेन टॉप टावर यूजिंग द लाईफाई। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इज अनदर इमर्जिंग एरिया, है ना वहाँ पर कुछ। देन यू नो दिस वन, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, IoT। व्हाट इज IoT? Internet of Things. क्या Internet of Things? Where devices with sensors can be connected together. Suppose this panel, this light, fan, camera, all have got sensor, and they all connect through internet, and they work independent. मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप कैमरा ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पैनल will shut on and off, fan will on and off, light will be there. You don't have to do manually. That is called IoT. And IoT can be used in agriculture, can be used in transport system, can be used in home, smart building, can be used in industry, smart industry. तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। Then you are aware of this one, we are using every day in our life, cloud computing. ये आज हम यूज कर रहे हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग, बीपीएससी एग्जाम में क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब सिंपल एरियाज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। Cloud computing. What is cloud computing? Anybody in the classroom? What do you mean by cloud computing? Tell me. What is cloud computing? We back up, we store any kind of data, right? Then not only backup, we can also do the computation on the data. We can retrieve the data. What is a cloud? Cloud is a storage system, which is not here, is a virtual. What is virtual? Somewhere else. And how do we connect to the cloud? By the use of internet, broadband. यही करते हैं ना, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर क्या करते हैं। एक समय क्या होता था, सर्वर होता था, पता है ना सर्वर, आपने देखा है सर्वर, बड़ा सा सर्वर लगाते थे।
आज आप देखोगे आप बिल्डिंग में ऑफिस में सर्वर नहीं होगा, क्या करें सभी जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है थ्रू इंटरनेट कनेक्ट है, क्लाउड, क्लाउड भी एक सर्वर है, यहाँ नहीं है कहीं और है ना, वर्चुअल मशीन या जो बोलते हैं डाटा सेंटर बोलते हैं, विच द कंपनी गिव्स, विच कंपनी, you know, Infosys, Microsoft, and IT company provide, you know, Oracle, IBM, they all provide us the services. And we as a user, what we do? We connect to the cloud, back up our data. Normal type में हम क्या यूज़ करते हैं? गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं ना, अब इसमें और इवॉल्व हो रहा है, आई क्लाउड होता है, यू नो, आईफोन वगैरह में जो है, मैकबुक उस में होता है ना, आई क्लाउड यूज़ करते हैं। तो आजकल हम यूज़ स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज के अलावा और भी इसके एडवांस फंक्शन। तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 टाइप ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज PaaS, एंड थर्ड होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज SaaS। ये सब इसके एप्लीकेशन एरिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपको BPSC पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। देन आई कम टू अनदर एरिया, यू आर अवेयर ऑफ दिस, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं। कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया? अपना खुद का परम, है ना, परम सीरीज सुपर कंप्यूटर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच बिल्ड परम सुपर कंप्यूटर? सीडैक पुणे जो है। और मैं अगर आपसे जीके क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज प्रेजेंटली फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? इट कैरी आउट एनी कैलकुलेशन वेरी वेरी फास्ट। तो विच वी हैव राइट नाउ, इंडिया का प्रेजेंट में कौन सा फास्ट है? तो ये हो गया करंट अफेयर्स। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन AI वी हैव नाउ एरावत इज ए सुपर कंप्यूटर। क्या है एरावत? क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो हमारा रैंक कितना था? 75th रैंक था, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स उसमें आता है वहाँ पर। और कई बार आप ये भी पढ़ते हो न्यूज़ में, क्वांटम, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटर, इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर पे, क्यूबिट, क्वांटम बिट्स। तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस, राइट। एंड द लास्ट पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ पेपर 2 आई एम राइटिंग हियर, that is a very important topic called emerging technologies, जैसे उसमें आता है नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। सो लेट मी राइट हियर, 6th one यू कैन राइट हियर, न्यू टेक्नोलॉजी डोमेन जो है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज में मैं लिस्ट कर देता हूँ। एक आता है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनोटेक। टुडे वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, नैनो पार्टिकल, नैनो मेडिसिन, है ना, नैनो मटेरियल्स। देन यू नो आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में रोबोट्स, रोबोटिक्स। सी ड्रोन इज ऑल्सो रोबोट। व्हाट इज अ रोबोट? प्रोग्राम मशीन। और आपको पता है रजनीकांत, चिट्टी देखा? रजनीकांत की मूवी 2.0, चिट्टी वगैरह, हॉलीवुड फिल्म में भी आता है ना, ह्यूमन लाइक मशीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, यू नो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हाफ मशीन हाफ ह्यूमन। ये सारी चीज़ें फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। बट नाउ रोबोट्स हैव कम एंड यू नो ह्यूमन लाइक रोबोट, देयर इज वन नेम यू आर अवेयर ऑफ, सोफिया। यू नो सोफिया इज अ ह्यूमन लाइक रोबोट, ह्यूमनॉइड बोलते हैं। एंड विच कंट्री हैज गिवन सिटीजनशिप टू दिस सोफिया? Saudi Arabia has given citizenship to this Sophia. But after Sophia, many have been made. In India also such kind of robots have been made. Like Gaganyaan, there is Vyomnaut, Gaganyaan mission, no? Where human space flight. So we will be having that one. So robotics comes there. Then I mentioned about laser. There are multiple use of laser. एक तो यूज में होता है लेजर का, क्या क्या यूज होता है लेजर का? नॉर्मली लेजर का बहुत सारा यूज है मेडिकल साइंस में, लेजर सर्जरी है ना, लेजर सर्जरी होता है ना। फिर आपको पता है लेजर का इंडस्ट्री यूज होता है ना, लेजर का ज़्यादा यूज होता है कटिंग, वेल्डिंग, वो सब में। लेजर का डिफेंस भी यूज होता है। अभी बड़ा खतरनाक हो रहा है ईरान इजराइल में। यू नो व्हाट इजराइल इज गोइंग टू यूज, अभी बहुत न्यूज़ में था, EMP पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभी चल रहा है ना, ईरान हैज अटैक्ड ऑन इजराइल ना। पहले पैलेस्टीन का हमास का था, अभी ईरान भी कूद गया उसमें लड़ाई में। तो अभी इजराइल ने धमकी दिया है ईरान को
कि द इजराइल इज गोइंग टू यूज EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। क्या होगा? ये सब लेजर लाइट। तो फ्यूचर में कोई वेपन वो नहीं होगा, न्यूक्लियर वो सब नहीं है, सिंपल लेजर लाइट। एंड योर लेजर कैन पेनिट्रेट इवन द बॉडी ऑल्सो। लेजर बहुत पावरफुल होता है। लेजर कैन बर्न एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हो लेजर से, पावरफुल लेजर। तो अभी इजराइल हैज़ गिवन वार्निंग टू ईरान बिकॉज दे विल यूज EMP वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, टू डिस्ट्रॉय द ग्रिड। ग्रिड मतलब पावर सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रिक फेलियर। दैट्स व्हाट द थिंग इज दैट। तो दिस अनदर थिंग इवॉल्विंग आउट, लेजर वगैरह है। और एक एरिया होता है सुपर कंडक्टर। आई राइट दिस वर्ड, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? एनीबडी इन द क्लासरूम, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? जीरो रेजिस्टेंस, गुड, वेरी गुड। वेयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, करंट कैन फ्लो इनफिनिटली। उसका कहाँ हम यूज़ करते हैं? MRI, यू नो MRI हॉस्पिटल में कभी देखा है? वो अंदर घुसा देते हैं, वो ब्रेन वगैरह का जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बुलेट ट्रेन, मैगलेव। यू नो बुलेट ट्रेन में क्या होता है? व्हील्स नहीं होते। क्या होता है बुलेट ट्रेन में? वो फ्लोट करता है, इट फ्लोट ऑन द ट्रैक। तो उसके लिए मैगलेव होता है। तो वहाँ पर चुंबक जो मैग्नेट होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम सुपर कंडक्टर्स, राइट? So many things are there which are evolving very fast. That's what I always say when you start any new subject. First thing is to go to the syllabus, and second thing is that PYQ, previous year question, what have been asked. And again remember that whatever science take I have written here, they are relevant for not only mains exam but also prelims exam. अब आजकल ये क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं वो, ये सब करंट से जुड़ा होता है, ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आपने करंट से नहीं कर रखा अच्छे से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यू नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं इसका सोर्स बता देता हूँ। यू हैव एनी बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? जनरल साइंस आई टोल्ड यू NCERT बुक। व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी? कोई बुक है आपके पास? नहीं है? ओके। मॉर्निंग में मैंने बैच लिया था, ऑल वेर आस्किंग सर बुक बताओ, कौन सा बुक है? तो आज साइंस टेक के ही बहुत सारे बुक है, राइट? बट अगेन इफ़ यू रियली वांट टू फॉलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ वही मैं इस पर भी आ रहा हूँ कि दैट करंट अफेयर्स। सो इफ यू लुक एट रिसोर्सेज फॉर साइंस टेक देयर, तो साइंस टेक के लिए पहला जो है, अगर रेफरेंस बुक के लिए यूज़ करना है, समथिंग यू वांट टू स्टडी फॉर एज अ सिलेबस, दैट इज थियरी पार्ट, थियरी एंड द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है? देयर मेनी बुक्स आर देयर, मैग्रॉल हिल का बुक आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस के बुक आते हैं, यहाँ पे आपको मार्केट मिल भी जाएगा। बट एक अच्छी बात है विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर, माई बुक, राइट? आई हैव रिटन नंबर ऑफ बुक्स इन सिविल सर्विस एग्जाम, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है, द बुक इज देयर इन द मार्केट, 4th एडिशन, ओकब्रिज पब्लिकेशन है। आई शो दैट फोटोग्राफ देयर, you'll find my name also given there. You'll get in the market also, और या तो Amazon, Flipkart, you can order from there also. तो अगर आप ऑनलाइन करते हो उसमें अभी डिस्काउंट वगैरह कुछ चल रहा है, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ओकब्रिज पब्लिकेशन ये बुक है। लेट मी जस्ट शो द फोटोग्राफ हियर। दे डोंट हैव इंटरनेट हियर, ओके? यहाँ पर नहीं है, क्रोम नहीं है। कहाँ पर है? किस जगह पे? ये वाले में? अच्छा, यहाँ आ जाता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज है। नहीं, एक आता क्रोमा आता है ना, क्रोमा में मैं बताता हूँ। क्रोमा में एक सेकेंड, ये कहाँ गया? राइटिंग पैड होता है, राइटिंग पैड भी नहीं है। एनीवे, आप इसको सर्च करना, इसमें एक राइटिंग पैड आता है। क्रोम क्या होता है? बहुत ही, आप सर्च करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरा नाम लिखना नीरज नचिकेता, ओकब्रिज, तो आपको वो बुक का पहला लिंक मिल जाएगा। तो वो अवेलेबल है ऑलरेडी देयर। उसमें ये है व्हाट आई हैव डन इन माय बुक। मैं स्मॉल बिट बताता हूँ। आई हैव एडेड करंट अफेयर्स, उसमें सारा है, आदित्य मिशन, गगनयान, डिफेंस का सारा कुछ दिया हुआ है। आई हैव ऑल्सो रिटन गिवन फ्रॉम द मेंस आंसर राइटिंग पार्ट, वो सारा भी है, ठीक है? तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, व्हाट आई वांट टू डू फॉर द क्लासरूम हियर, एडुटेरिया का जो साइंस टेक का मटेरियल है, दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, जो पहले का था, एंड यू विल गेट एज अ इन द क्लासरूम। एंड जस्ट मैंने बताया डाउन स्टेयर आई वॉज टॉकिंग विद द पर्सन देयर, हम लोग का प्लान ये चल रहा है कि व्हाट विल डू हियर फॉर दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने ये प्लान किया है कि आवर क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट एवरी डे आई विल हैव क्विज
objective type question, MCQ. And I will give you one mains question to write during my class, right? And that will be evaluated, a group बना दिया जाएगा और उसमें mentors और मैं भी रहूँगा, so that your mains answer writing part और class में हम लोग क्या करेंगे, what we'll do, we'll have a general quiz, MCQ, which will contain question from previous year exam plus new question. ये मेरा प्लान है क्लास के लिए, ठीक है? तो एक रेफरेंस बुक आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा ये जो है एडुटेरिया का जो होगा, वॉट एवर आई टीच इन द क्लासरूम, अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आई गिव यू नोट्स ऑल्सो ना, मेरे अपने नोट्स होंगे, ठीक है? हैंड आउट होगा या कुछ डिक्टेशंस होंगे, दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग देयर। और आपको क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, फॉर करंट जो करंट साइंस टेक के लिए है, अब जैसे उन्होंने बताया विजन का नाम लिया, ठीक है? जैसे विजन का PT 365 वो, लेकिन वो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, BPS हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि BPSC और स्टेट PCS का जो साइंस टेक है वो ऑलमोस्ट UPSC के बराबर होता है, वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। आपको कई और भी जैसे कि इंसाइट होता है, कई बच्चे मेनी स्टूडेंट दे फॉलो इंसाइट, है ना, विजन, इवन दृष्टि, वो सबके करंट अफेयर्स होते हैं। तो एनी सच करंट अफेयर कंपाइलेशन, व्हाट आई वांट टू से, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, दैट यू कैन फॉलो इट। And let's say if any question come from science and technology from last 1 year current affairs, that will be the same as what you follow for the UPSC. उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एक फ़ायदा ये हो सकता है कि what advantage you can get is that if you read that one, तो कई बार चीज़ें हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, तो दैट यू कैन फॉलो द करंट अफेयर्स। या जो है ना, ये जो कंपाइलेशन आता है, मंथली कंपाइलेशन और एनुअल कंपाइलेशन, एंड दे आर अवेलेबल टेलीग्राम, है ना, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, PDF वगैरह सारा होता है ना, उसको आप फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से फॉलो करना है। और क्या लास्ट पार्ट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, यू हैव टू टेक अ क्वेश्चन बैंक, एंड इन दैट क्वेश्चन बैंक ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज पॉसिबल। एंड अगेन रिमेंबर दैट व्हेन यू टेक क्वेश्चन बैंक ना, टेक फॉर बोथ प्रीलिम्स BPSC एग्जाम एंड ऑल्सो मेन्स BPSC एग्जाम, दोनों का आप रखना है वो पार्ट को हो जाए, ठीक है? तो ये जनरल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। सी आई ट्राइड टू यूज़ हिंदी, आई वांटेड टू यूज़ कंप्लीट इंग्लिश, बट अगेन आई हैव यूज बिकॉज कि थोड़ा बहुत उसको है ना एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए, तो bilingual I kept it there. But generally what I'll do during my class and lecture, 90% will be English, 10% I'll use Hindi. And some areas to make your understanding simpler, I will use Hindi, है ना, ताकि आपको better समझ में आ जाए, तो वो चीज़ वहाँ पर आता है। How many of you come from science background? Just raise your hand. नहीं उठाओ, पूरा अच्छे से हाथ उठाओ. Okay, good. How many of you have given your BPSC exam earlier? Means pre? अच्छा, you qualified pre? No? Okay, you have qualified. Means लिखा है आपने? नहीं आपने लिखा है means? अच्छा लास्ट में लिखा है. अच्छा, what's your name? आपका नाम क्या है? Roshan Gupta. He has written means. Anyone else except him? Except Roshan? Means exam. BPSC means. Oh my goodness. Good. What's your name? Good. Very good. Safe. We have such a good one. यही तो चीज़ है ना. For a teacher, if you have a reciprocal students, the teacher is always delighted to give you more better content. यही मतलब है कि दिल्ली में क्या होता है, 500 की भीड़ होती है, कोटा फैक्ट्री जो होता है, वहाँ पर पढ़ाने का एंगल अलग होता है. एंड इफ़ यू हैव अ बेटर स्टूडेंट, स्मॉल बैच का एडवांटेज भी है, मैं बता रहा हूँ. यू आर मोर लिबर्टी टू आस्क टीचर, है ना. यहाँ ज़्यादातर पटना इज मेन फॉर हिंदी मीडियम, राइट, जो रीजनल लेवल पर होता है. बट इवन दो यू हैव टेकन इंग्लिश, to be confident in yourself, right? Nothing to worry about it. And what we are trying to do it, like I am coming to Patna, I am coming only to Edutaria, no other institute. So whatever the best will be there, I will be trying to help you out in that context, right? तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है. And till far, I think other teachers have come in your batch. Dr. Anil Vajpayee sir was there. Huh? Has he taken any class? Anil Vajpayee sir? Huh? Mukesh Sahay sir. History. He has taken history as a part of it. Okay. You have teachers there who will be helping out. I am here for the science and technology. That area I would like to cover that. Right? Anything you want to ask? Any query comes to your mind? You all are from Patna? No? कहाँ से हो आप लोग? दरभंगा से आपका? खगड़िया. अच्छा. And मुजफ्फरपुर? चंपारण? West or East?
ईस्ट चंपारण एक बार गया हूँ मैं, वो गांधी जी का म्यूजियम है ना, वो सब, हाँ यस। अच्छा देखो, घर भी आसपास होगा क्या? यस। देवघर, अच्छा मैं, मुझे आई एम फ्रॉम देवघर, बाबा धाम, नेबर। ये बात किसी को नहीं पता है। मेरा जो स्टॉक देखना, यू नो जो स्टॉक, रिसर्च यू विल फाइंड द जो स्टॉक। हाँ, आई एम फ्रॉम देवघर, आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप देयर। मंदिर के पास मेरा घर है, बाबा मंदिर है ना। बट फॉर मेनी ईयर्स आई एम आउटसाइड, बट माई ओन फैमिली इज़ इन दिल्ली। ये मेरे परिवार, मेरे बच्चे वो दिल्ली में हैं। तो वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, राइट। ऑल्दो माई नेटिव प्लेस इज, है ना यहाँ पर। और थोड़ा और पर्सनल बात बता देता हूँ, मेरा ससुराल बिहार में है, राइट। राइट, जमुई, यू नो जमुई, लखीसराय जमुई, जमुई मेरा ससुराल है। सो बिहार पूरा रूट है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द विच कम्स देयर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पटना आने में। पटना बीइंग अ प्लेस फॉर बीपीएससी एग्जाम, बट यहाँ और भी सारे को एग्जाम के लिए। सो आई ऑलवेज फील यू नो हैप्पी व्हेन आई कम हियर, ठीक है। एक चीज़ है, मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ा है, मैंने बताया बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा है, बाजीराम एंड रवि, विजन IAS, दृष्टि। अब मैं कॉर्पोरेट जैसे इंस्टीट्यूट नहीं जाता हूँ, बिकॉज रीजन बीइंग आई एम अ पर्सन हु like to go many places and impart the teaching there and help the children. Hyderabad, Bangalore, Odisha. Like after here, I am going to Hyderabad again. I've been going to. Last year मैंने दृष्टि छोड़ा है, राइट। क्या होता है ऐसे बड़े कॉर्पोरेट में, आप पैसा तो बहुत कमाते हो, लेकिन आपकी जो आज़ादी होती है वो छिन जाती है, राइट। यू डोंट हैव द पर्सनल फ्रीडम एंड यू वर्क लाइक अ मशीन, ठीक है। What I believe कि there has to be always a freedom to teach and quality content, ठीक है। तो मेरे लिए वही होता है, पैसा मैटर नहीं करता है। और मैं आपको फैक्ट बताऊँ, जितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने आपको बता दिया, ऊंचा मकान फीका पकवान, वो कहानी है। नहीं, ये चीज़ है, क्योंकि पता है ना कॉर्पोरेट लोग क्या करते हैं, व्हाट द कॉर्पोरेट डज, कॉर्पोरेट पीपल दे बेसिकली दे डू अ लॉट ऑफ मनी फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है हिंदू पेपर का बड़ा ऐड 35 लाख रुपया खर्चा होता है, 35 lakhs, और करोड़ों रुपया तो खाली ऐड में दे रहा है। क्यों होता है? वही होता है ना, ब्रांड करने के लिए जो है, और उसको वहाँ से बिजनेस करना, वो तो उनको मतलब नहीं है किसका हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। वो तो बाद में तो खरीदते हैं पैसे लेकर टॉपर्स को, फैक्ट ये है। और दुर्भाग्य की बात ये है, आई फील वेरी सैड कि कोई IAS बनने के बाद बिक जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहनत करके टॉपर हुए हो और आपने उस इंस्टीट्यूट में नहीं अपने पढ़ाई किया, यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप दूसरों को गुमराह मत करो। क्या करते हैं, इंडोर्स कर देते हैं, पैसे मिल जाते हैं उनको, फिर उनका फोटो छप जाता है सब जगह पे। यही चल रहा है अभी, ये तमाशा चल रहा है, पूरे कोचिंग इंडस्ट्री ये तमाशा चल रहा है ना। तो मैं यही मानता हूँ, तो आजकल के बच्चों को अवेयर होना है। यू शुड बी अवेयर पर्सन कि कहाँ आपको पढ़ना है, वेयर यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली और कॉर्पोरेट जितने इंस्टीट्यूट्स हैं ये ऐसे ही है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इस वक्त टॉपर है ना आदित्य श्रीवास्तव, कोचिंग किया है नहीं किया है? द फैक्ट इज दैट IIT कानपुर का है ना, फ्रॉम लखनऊ, सेल्फ स्टडी की क्या कहने में, तो कोचिंग का कहाँ यूज़ होता है। अब ये सब सिस्टम में ठीक है, जैसे एडिटोरिया क्या है, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये आपको हेल्प करता है, मेंटरशिप ये हेल्प करता है। वो तो क्या वाजीराम या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन करने कहा गया ना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इज़ नॉट द मैटर ऑफ IIT और नॉन IIT, ऐसा कुछ नहीं है। इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स। UPSC इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं UPSC की बात कर रहा हूँ, BPSC भी सेम चीज़ है। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, इसमें जो काबिलियत जिसका दम है वो निकालेगा, ठीक है। और कई तरह जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, देयर आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेट्स से शी हैज़ गॉन 2 times इंटरव्यू बट नॉट एबल टू गेट, तो वो अलग फैक्टर होता है जहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट वर्किंग हार्ड एंड रीचिंग दैट यू हैव टू बी देयर, एंड द डेस्टिनी इज द पार्ट, वो चीज़ है ना। तो आजकल वही चीज़ को ध्यान में रखना है कि पढ़ने वाला जो है ना, या पढ़ने वाली, वो कहीं से भी कर सकता है। इज़ नॉट द मैटर ऑफ द प्लेस, इज़ द मैटर ऑफ द गाइडेंस एंड द राइट अप्रोच एंड द राइट ट्रैक, ठीक है। इसीलिए मैंने जितने भी विज़न, वाजीराम, जितने बड़े इंस्टीट्यूट है,
क्योंकि वहाँ पर जो आप देख लो ना, वहाँ अच्छे टीचर नहीं होते, आई टेल यू फैक्ट, यू नॉट फाइंड गुड टीचर्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है, एक साइकोलॉजी है ना, अब यहाँ एडिटोरियल क्यों आएगा, एडिटोरियल नया है, कोई है नहीं, तो हाँ डिसएडवांटेज फील करते हैं। लेकिन आपको वही है, अब जब वहाँ जाओगे ना, तो आपको वहाँ ज़्यादा डिसएडवांटेज फील होगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, आई टेल यू, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विल बी 100% परफेक्ट, एंड द नो टीचर्स, ऑल टीचर्स विल नॉट बी गुड, आई टेल यू दैट। कुछ टीचर अच्छे होंगे, कुछ टीचर मीडियोकर होंगे, और कुछ टीचर एकदम लोअर होंगे, 100% हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ होता है, आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट, वो चीज़ आपका एम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही बिलीव करता हूँ कि यू शुड बी ऑन द ट्रैक, एंड इफ यू नो व्हाट इज द एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर, एंड यू हैव लर्न द सिलेबस वेरी वेल, एंड यू आर सॉल्विंग पेपर्स, देन योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट विल मेक यू क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। तो उससे आप बन सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस, वट एवर थिंग यू हैव, यू आर इन द राइट प्लेस, जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन दैट, राइट। Is it okay to everyone? All right. So don't be discouraged, and don't be feel demotivated, and don't go by the कि इतने ऐसा नहीं है, karma होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा, each one of you can make to the list, just you have to keep on working that. Today it was a general orientation class. I have come to Patna for this purpose, that I wanted, I myself called the management, okay, I wanted to come to Patna to talk to all of you, so just interact with all of you, so that you know that who is the person who is going to teach you, right? So, but when I'll come for the class, it will be a continuous classes. So there I'll not give you overview. Now remember that. I will directly start from the subject. I'll start with the topic. General introduction I have given. उस समय मैं ये कर दूंगा कि जो नए बच्चे आएंगे उनको बोल देंगे ये वीडियो देख लो. I have already explained what is the subject, right? हम लोग सीधा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. We'll start from the topic. All right. So I am very glad, right? I'm happy to see you all, and we will interact more, right? And always don't hesitate to talk to me, even downstairs. If you have any kind of doubt, any query, please feel free and come to me, right? I am very approachable person. तो ये नहीं देखना कि लंबे बाल वाला, दाढ़ी वाला, ये आदमी पता नहीं कौन खूंखार आदमी है, ठीक है। तो वो नहीं है, आपको आके बात करना है, ठीक है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आप जब टीचर के पास जाते हो, अपने कठिनाई होती है ना कोई सब्जेक्ट समझने में, तो जब आप रीच आउट करते हो तो टीचर बियॉन्ड अपने लेवल पे जाके आपको समझाता है, एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो वो चीज़ यहाँ करना है, ठीक है। सो आई बिलीव दैट दिस रियली हेल्प यू ऑल, एंड यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द एग्जाम, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो टू दैट. But I will request all of you, before I start my classes here in Eduteria, you should first go to the basic foundation of science. If you have any book like Lucent or Aryan or NCERT, please start reading the general science. ठीक है, so that you will be able to understand when I start the classes. कई बार होता है ना background reading करके आना चाहिए, तो please make sure to read that. All right, so we'll catch up again there. All right, thank you, take care, bye bye, thank you. बहुत अच्छे बच्चे लोग, कुछ बोलते ही नहीं, सब चुपचाप है, क्यों?